friends, I am Hemant Agarwal, host and coordinator for webinar conducted by chsworldforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced. The website has very simple language articles, draft of various types of applications, our earlier videos, that is webinar videos, and more shall be added as and when time permits. Purpose of this webinar is to create special bondings, which is not possible physically. Note that social bonding is very much necessary to avoid disputes and live in peace. Our webinar is for free knowledge and experience sharing, conducted in non-technical simple language, which can be understood by everyone. As far as possible, speaker will not speak technical or legal language. All friends are requested to listen carefully without interrupting the speaker. Our today's topic is Managing Committee, the sole authority, trustee, governing and administrative rights. We will be covering laws, functionings, liabilities and responsibilities, managing committee meetings, records and registers, how to manage troubling members, etc. Before we start, who or what is a managing committee? It's a group or body of persons duly voted and elected by general members of the society. So hence by this, they are the representatives of the general members of the society. Hence they have got sole administrative and management and governing, and they are empowered with discretionary authority. This thing is covered under section 220, 2(20), which authorizes the managing committee to give directions regarding business of such society. Under section 2(27), society is an autonomous association. It is a democratically controlled enterprise. Section 154(b)(1) (9), अभी जो जुलाई 2019 में नया MCS एक्ट अमेंडमेंट होके आया, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कमिटी मीन्स मैनेजिंग कमिटी is the governing body of a society to which direction and control of the management of the affairs of the society is entrusted. इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले पर्टिकुलर सेक्शन में 154(b)(1) में सोसाइटी को मैनेजिंग कमेटी कंप्लीट दिया हुआ है, डायरेक्शंस करने का ऑर्डर अथॉरिटी दिया हुआ है, एंड इट इज द सोल कंट्रोलर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी. एक और सेक्शन है सेक्शन 73(1), ये पुराना प्रिंसिपल एक्ट में था. द मैनेजमेंट ऑफ एवरी सोसाइटी shall vest in a committee which is duly elected by the general body. अभी आपको पता ही होगा कि छोटी सोसाइटी हो या बड़ी सोसाइटी हो, इलेक्शन इज 100% कंपलसरी. ये नहीं बोल सकते कि छोटी सोसाइटी है तो इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, या बड़ी सोसाइटी है तो. आज के टॉपिक के अगर पर हम आते हैं तो आज का लेक्चर जो है, इट इज़ ओनली फॉर प्रूडेंट and humble managing committees who want to conduct themselves according to law, who do not want to or are going to be arrogant or adamant or threateners or egoistic people who do not think that they are honorary. या कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हम सोसाइटी के ऊपर सोसाइटी के जनरल बॉडी के ऊपर हम मेहरबानी कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं. तो ऐसे लोगों के लिए ये लेक्चर नहीं है, बिकॉज इट इज कंसर्निंग ट्रांसपेरेंसी दैट हैज टू बी शोन टुवर्ड्स योर मेंबर्स. आपने यूजुअली कई बार ये सुना होगा कि मोस्ट मैनेजिंग कमिटीज की एक क्रोनिक हैबिट होती है डिक्लेयर करने की कि भाई हमको प्रेशराइज मत करो, हमारा काम तो ऑनररी है, हम ऑनररी लोग हैं, तुम्हारे नौकर नहीं हैं, हम अपना फैमिली टाइम छोड़कर आते हैं सोसाइटी की सेवा के लिए. वी आर गिविंग फ्री सर्विस एंड यूजिंग आवर प्राइवेट टाइम. इस तरह के शब्द या भाषा जो बोलता है, दे आर एरोगेंट माइंडेड MCs एंड हु आर नॉट फिट फॉर MC सीट्स. एंड यूजुअली साधारण तौर पे यही ऐसे ही मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स
कारण बनते हैं इन फाइटिंग का। सोसाइटी के मेंबरों के बीच में सेटिस्फैक्शंस नहीं होता है, ये सारी चीज़ों को लेके फिर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटमेंट की नौबत पहुंच जाती है। ऐसे ही एरोगेंट मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स सोसाइटी के पैसे का गबन करते हैं, सोसाइटी को लॉस करते हैं, सोसाइटी मेंबर्स के लॉस करते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये होता है कि मैनेजिंग कमेटी मस्ट बी हम्बल एंड कंडक्ट सोसाइटी अफेयर्स। ये दिस माइट सीम रेयर बट इट इज़ ए वेरी इजी पॉसिबिलिटी। हम्बल होना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, इट्स वेरी इजी। और ऐसा भी नहीं है कि सोसाइटी मैनेज करना डिफिकल्ट है। एवरी वर्क हैज़ इट्स ओन स्मॉल डिफिकल्टीज। इवन मैनेजिंग ओन फैमिली, अपने घर को भी मैनेज करने में कई डिफिकल्टीज आती हैं। बीवी बच्चे नहीं सुनते, हस्बैंड नहीं सुनता है, माँ बाप नहीं सुनते, परेशान करते हैं, भाई बहन वगैरह वगैरह, तो हर जगह होता ही है। और एक फेमस डायलॉग है सोसाइटी में कि हम लोग तो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, आप हमारे फैमिली मेम्बर्स के थे, लेकिन लड़ाई झगड़ा करने के टाइम पे दुश्मन बन जाते हैं, फैमिली नहीं रहते। सेक्रेटरी मस्ट एंश्योर दैट ईच एमसी मेंबर इज गिवन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ एनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम थोड़ा आगे जाके समझ के लिए। इफ एनी एमसी मेंबर डिलिबरेटली रिमेन्स एब्सेंट और डज नॉट वांट टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सेक्रेटरी ने उसको डेलीगेट किया हुआ है। सोसाइटी का सेक्रेटरी का मतलब है ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। जो चेयरमैन है, यू कैन से ही इज द चेयरमैन of a company, so the company of the chairman of the society also. He is only a father figure. Not much authority or power is given to the chairman. So if any MC member deliberately remains absent, मैनेजिंग कमेटी के कार्यकाल में कई बार ऐसा होता है कि मेरा नहीं सुना, या तुम अकड़ रहे हो, या वगैरह वगैरह, तो वो एब्सेंट रहना शुरू करता है। बॉम्बे की भाषा में जिसको बोलते हैं आड़ीबाजी, या उंगली करना, या खुजली करना, दिस आर बॉम्बे वर्ड्स। कोई मेंबर बोलता है कि नहीं मैं तो ऑनरेडी मैं काम कर रहे, तो इधर थोड़ी ना है, तुम सेक्रेटरी हो, बायलॉज में तो ऐसा लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी का सारा फंक्शन है, बरोबर है। लेकिन अगर सेक्रेटरी का फंक्शन ये भी है कि मैनेजिंग कमेटी के इंडिविजुअल मेंबर को बोला जाए कि भाई तुम्हारा काम है लिफ्ट का अफेयर्स देखने को, तुम्हारा काम है गार्डन्स का अफेयर देखने को, तुम्हारा काम है सिक्योरिटी एजेंसी को हैंडल करना वगैरह। तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डेलीगेटेड टू ईच एमसी मेंबर। Maybe 1 or 2 or 3 responsibilities might be delegated to single MC member in small societies. छोटे सोसाइटीज में टिपिकली स्ट्रेंथ होता है चार एमसी मेंबर का, 5, 8, 9 ऐसे स्ट्रेंथ होता है। बायलॉ में प्रिस्क्राइब्ड 11 मेंबर है मिनिमम स्ट्रेंथ, बट इट इज अ फैक्ट कि यू नेवर एवर गेट 11 मेंबर्स, जस्ट बिकॉज वन ऑफ द रीजन इज कि रिजर्व सीट्स है, वो यूजुअली नहीं भरता है। तो अगर ऐसा कोई एमसी मेंबर परेशान करता है मैनेजिंग कमेटी को, एमसी मेंबर, तो सेक्रेटरी का काम है उसको हटाने का प्रतिक्रिया कार्यवाही शुरू करे बाय पासिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस प्रोसीजर शुरू करे। बायलॉ 124 में दिया हुआ इसके बारे में। सेक्रेटरी को यह करना इसके लिए जरूरी है कि बाकी एमसी मेंबर्स डिमोरलाइज नहीं हो, परेशान नहीं हो, सफर नहीं करे, एंड दे डू नॉट बिकम ए जोक, मजाक ना बन जाए बाकी मेंबरों के प्रति कि देखो हमने चुन के दिया इनको और ये आपस में लड़ने में शुरू हो गए। अगर एमसी मेंबर्स अपने आप को ट्रूली और एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंसी से मेंटेन करते हैं तो एक गुडविल जनरेट होता है हाउसिंग सोसाइटी में, परमानेंट गुडविल जनरेट होता है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। और देखा जाए तो एक्चुअली वेरी सिंपल भी है ये, वेरी वेरी सिंपल। मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ कहने के लिए, लेकिन हकीकत में अगर एमसी ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट करता है अपने आप को तो सोसाइटी को मैनेज करना बहुत आसान है। कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मोर देन 90% डिस्प्यूट्स, मतलब 90% से ज़्यादा जो लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट्स है तू मैं होती जो सोसाइटी में, वो नहीं होंगी अगर मेजॉरिटी अगर एमसी मेंबर अपने आप को ट्रांसपेरेंसी से कंडक्ट करें। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स विल नेवर रेज डिस्प्यूट्स। ट्रबल मेकर मेंबर्स will not find support with their malicious WhatsApp campaign rumors, जिसको हम बोलते हैं ना कि खुसुर पुसुर की राजनीति, whispering politics amongst other members।
हाउसिंग सोसाइटी में सबसे बड़ा रोग जो है वो है कुसुर फसुर का, कि एक मेंबर है वो 4 मेंबर को भड़काता है, वो 4 मेंबर भेड़ चाल की तरह वही सुनते हैं और आगे पास ऑन कर देते हैं, और बाकी सब भी धीरे धीरे मैनेजिंग कमेटी के विरुद्ध होना शुरू हो जाते हैं बेकारणवश। मैनेजिंग कमेटी जो है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है मेंबरों का। जैसे हमने लेजिस्लेचर के लिए इलेक्ट किया है प्रतिनिधियों को, जैसे हमने सेंटर में मेंबर्स को इलेक्ट किया पार्लियामेंट के लिए, वैसे आपकी मैनेजिंग कमेटी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जैसे उनको सारा का सारा अधिकार मिला हुआ है। देयर इज नो एक्सेप्शन टू इट। ये अधिकार कौन से कानून में मिला हुआ है, कौन सी कलम, कौन से सेक्शन में मिला हुआ है? मैनेजिंग कमेटी को सोल एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्निंग राइट्स जो मिला हुआ है वो सेक्शन 73(1) में मिला हुआ है, सेक्शन 2(20) में मिला हुआ है। दिस आर वेरी स्पेसिफिक वर्ड्स इन दिस सेक्शन। और दूसरा, अभी लेटेस्ट जो एमसीएस एक्ट आया हुआ है जुलाई 2019 में, उसमें एक नया सेक्शन ऐड किया 154(b)(1)(9। तो इस सेक्शन में भी यही लिखा हुआ है कि मैनेजिंग कमेटी को एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्निंग राइट्स दिया हुआ है। अब मजेदार बात, सोसाइटी के जनरल मेंबर्स को कोई भी खास अधिकार नहीं दिया हुआ है। इन अदर वर्ड्स, सोसाइटी जनरल मेंबर्स डू नॉट हैव एनी राइट, आई विल रिपीट, एनी राइट टू डिक्टेट or direct MCs, managing committees, for anything in the regular functioning of society affairs. For your benefit, I'll repeat this one thing because लोगों को ये धारणा है, लोग मैनेजिंग जनरल मेंबर्स ये सोचते हैं कि हम मैनेजिंग कमेटी को ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, मैनेजिंग कमेटी को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। वो अधिकार आपको बोलने का जनरल मेंबर्स को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोगों के प्रतिनिधि है, मेंबर्स के प्रतिनिधि है, और उनको अधिकार दिया हुआ है, सोल अधिकार दिया हुआ है, अकेला अधिकार दिया हुआ है उस चीज। सो सोसाइटी मेंबर्स डू नॉट हैव एनी राइट टू डिक्टेट और डायरेक्ट मैनेजिंग कमेटी फॉर एनीथिंग इन द रेगुलर फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी अफेयर्स। देयर इज नो स्पेसिफिक पावर्स गिवन टू जनरल सोसाइटी मेंबर्स accept decisions during general body meetings and to avail common amenities and services। और एक और छोटा सा अधिकार दिया हुआ है, to demand selective non private documents of society। नॉन प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का मतलब है वो और किसी मेंबर का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पूछ सकता, उसका एग्रीमेंट, उसका बिल्स, उसका नॉमिनेशन फाइल, पेपर्स वगैरह वगैरह वो नहीं पूछ सकता। बाकी सोसाइटी में क्या पूछ सकता है, आई विल एक्सप्लेन। सो देयर इज नो स्पेसिफिक पावर्स गिवन टू जनरल सोसाइटी मेंबर्स एक्सेप्ट डिसीजंस ड्यूरिंग जनरल बॉडी मीटिंग। जनरल बॉडी का मीटिंग हो गया आपका एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग और स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग। अभी इसका मतलब ये हो गया कि जो एजेंडा है जनरल बॉडी मीटिंग, तो फॉर एग्जाम्पल टू डिस्कस एंड अप्रूव द अकाउंट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर सो एंड सो, ये एजेंडा का डिसीजन लेने का अधिकार सोसाइटी के जनरल बॉडी मेंबर्स को दिया हुआ। उस समय अगर वो ये कहते हैं कि हम ये डिसअप्रूव करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, तो ये उनका डिसीजन फाइनल है। सेक्शन 72(72) में ये लिखा हुआ है। इसके अलावा और कोई डिसीजन लेने का अधिकार जनरल बॉडी में नहीं है और श्योर करने का भी नहीं है। टिपिकली हर सोसाइटी में जनरल बॉडी के मेंबर्स श्योर करना शुरू कर देते हैं, जो गैर कानूनी। सोसाइटी का काम करना, कंडक्ट करना, रनिंग करना, मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी वर्क। देयर आर hundreds of, not hundreds, but many statutory compliances that needs to be conducted by managing committee, which includes filing of returns related to GST, income tax, profession tax, property tax, और बाकी कानूनों को पालन करना। कंप्लायंस ऑफ अदर लॉज लाइक DMC एक्ट, फायर एक्ट, MRTP एक्ट, लिफ्ट एक्ट वगैरह वगैरह। मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन के बाद में पहला जो जिम्मेदारी है, जो मैंडेटरी जिम्मेदारी है, वो है टेक ओवर या हैंड ओवर जिसको बोलते हैं, कि पुरानी मैनेजिंग कमेटी से
या एडमिनिस्ट्रेटर अगर बैठा हुआ है तो उससे प्रॉपर सोसाइटी के रिकॉर्ड्स, रजिस्टर, फाइल्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, बैंक चेकबुक्स है, पासबुक है, वाउचर फाइल्स है, वगैरह वगैरह, ये सब उनसे लेना। तो लेने का तौर तरीका भी सिंपल है, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सोसाइटी में अगर 100 फाइल है तो हर फाइल के राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे एक 3x3 का स्टिकर लगाओ, उसमें लिखो फाइल नंबर 01, 02, 03 वगैरह, और उसके अंदर फाइल के अंदर कितने पेजेस हैं वो एक टेंटेटिव पेजेस लिख दो। अगर ऑफिस में मैनेजर है या कोई मैनेजिंग कमेटी मेंबर गिनने को तैयार है तो गिन ले और उधर लिख दे भाई 78 पेजेस, फाइल सेकंड में 52 पेजेस, वगैरह वगैरह। एक और इम्पोर्टेंट काम है मैनेजिंग कमेटी को, टू प्रिपेयर इलेक्शन फाइल एंड परमानेंटली प्रिजर्व इलेक्शन रिजल्ट रिपोर्ट। एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आरोप देता है कि फला फला मेंबर्स को मैं इलेक्टेड घोषित किया करता हूँ मैं, तो वो रिपोर्ट लेके रिकॉर्ड पे रखना बहुत ज़रूरी है। मैनेजिंग कमेटी को ये भी ध्यान रखना है कि दे आर लाइबल फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इफ एनी ऑफ द सोसाइटी फाइल्स, रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स गो मिसिंग और गेट लॉस्ट और आर डिस्ट्रॉयड इन एनी। इस प्रोसिक्यूशन से भी बचा जा सकता है। इसके भी बहुत से तौर तरीके हैं। वन ऑफ द तौर तरीका इस कि तुरंत एक प्रॉपर सोसाइटी के लेटर हेड में लिस्ट बना के लोकल पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड डायरी एंट्री करवा दिया जाए कि भाई ये मिसिंग हो गया है। अगर वो FIR लेता है तो वेल एंड फाइन, और नहीं लेता है तो कम से कम रजिस्टर एंट्री तो करवा दिया जाए। मैनेजिंग कमेटी का जो कोई मैंडेटरी काम है वो करना ज़रूरी है। बाकी अगर सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी बाकी कोई काम नहीं करती है तो सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी का कुछ खास नहीं बिगड़ता है। उसमें से एक है सेक्रेटरी को मैनेजिंग कमेटी का एजेंडा फॉर्मुलेट करना है। सेक्रेटरी को मैनेजिंग कमेटी का एजेंडा फॉर्मुलेट करना है कम से कम 3-4 दिन पहले, और उसमें बाकी सारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को कंसल्ट करे, टेक इनटू कॉन्फिडेंस, कोऑर्डिनेट करे और MC मीटिंग की नोटिस बनाए। उसके लिए बायलॉ 131 के हिसाब से मैनेजिंग कमेटी मीटिंग का जो नोटिस एजेंडा पीरियड है वो 3 दिन का है। पर इसको भी आप, चूंकि ये बायलॉ रिलेटेड है, कि चूंकि मैनेजिंग कमेटी के नोटिस पीरियड MCS एक्ट और रूल्स में नहीं लिखा हुआ है, और चूंकि ये नोटिस पीरियड बायलॉ में है, तो आप मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग 3 घंटे 4 घंटे के नोटिस में भी बुला सकते हैं बाय मेकिंग प्रॉपर एंट्री इनटू द मैनेजिंग कमेटी मिनट्स कि ये अर्जेंट मीटिंग किस कारण से हुई। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मिनिमम 3 डेज का नोटिस किया जाए। इमरजेंसी मैनेजिंग कमेटी मीटिंग कैन बी कॉल्ड विद इन आवर्स, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस टू दैट। मैनेजिंग कमेटी में मीटिंग में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ करना चाहिए जिसके वजह से मैनेजिंग कमेटी के ऊपर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, मतलब हिंदी में जिसको कहे तो फंड्स की गबनबाजी, पैसा खाना पीना जो बोलते हैं। सो दे शुड हैव एन लास्ट एजेंडा ऑफ द MC notice should be to approve all expenditures and activities conducted up to date of current MC meeting. This is very important. और अगर आप ये कहेंगे कि एक्सपेंडिचर्स कैसे अप्रूव करें, तो नोटिस एजेंडा के साथ में आपको एक शीट देना है। उस शीट में लिखना है एक्सपेंडिचर्स कंडक्टेड फ्रॉम प्रीवियस मैनेजिंग कमेटी टिल डेट ऑफ नोटिस। अब उसमें क्या आएगा, सीरियल नंबर आ जाएगा, 4-5 शब्द आ जाएंगे उस एक्सपेंडिचर के बारे में, कि जैसे सिक्योरिटी चार्जेस, अमाउंट आ जाएगा और डेट आ जाएगा। इस तरह के आपको एक शीट बनाना है प्रॉपरली, और ऐसे ही सारे एक्सपेंडिचर का एक पर्टिकुलर शीट बनाना है। एट द एंड ऑफ द मीटिंग द सेक्रेटरी और द ट्रेजरर विल पुट अप दिस एंड ऑल द मेंबर्स विल बी अवेयर ऑफ इट कि मैंने क्या खर्चा किया हुआ है और क्या खर्चा नहीं किया हुआ है, और वो उसे पास करते हैं। कई बार क्या होता है कि जनरल मेंबर्स कंप्लेन करते हैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में, यानी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास में, बोल के कि भाई ये सोसाइटी के सारे फंड्स का इन्होंने गबनबाजी किया हुआ। उसमें से आधे मैनेजिंग कमेटी मेंबर ये बोलते हैं कि नहीं हमें इसको पता नहीं है, तो सेक्रेटरी और चेयरमैन और ट्रेजरर का काम है।
लेकिन ये पर्टिकुलर एजेंडा से सारे मैनेजिंग कमेटी कंसेंट देते हैं उस पर्टिकुलर खर्चा का, और ये नहीं बोला जा सकता है कि सेक्रेटरी ने खर्चा किया मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में आप पास करोगे, ये एसेंशियल है। जो एक दूसरा स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजिंग कमेटी, वो है स्क्रूटिनाइजिंग न्यू मेंबरशिप ट्रांसफर फाइल्स। मैनेजिंग कमेटी सेक्रेटरी को ये देखना है, काम सेक्रेटरी का होता है, अनलेस एंड अनटिल एक मैनेजिंग कमेटी में ये डेलीगेट कर दिया कि भाई ये रमेश पांडे को हम डेलीगेट करते हैं मेंबरशिप फाइल स्क्रूटिनाइज करने के लिए। तो सेक्रेटरी को स्क्रूटिनाइज करने के समय, स्क्रूटिनाइज मीन्स इंस्पेक्शन करने के समय, इन्वेस्टिगेशन, कि भाई जो फ्लैट बेचा है, जो एग्रीमेंट आया हुआ है, वो मालिक ने ही बेचा हुआ है या नॉमिनी ने बेचा हुआ है। ये देखना है उसको कि फ्लैट का पहले से मॉर्गेज तो नहीं था, मॉर्गेज होने के बाद में सोसाइटी के रिकॉर्ड में मॉर्गेज रजिस्टर चेक करना है उसको, और ये देखना है कि अगर मॉर्गेज है तो वो ट्रांसफर फाइल्स तुरंत रुक जाए, क्योंकि मैनेजिंग कमेटी ही बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अंडरटेकिंग देती है कि हम इसमें फर्दर कोई ट्रांसफर्स वगैरह वगैरह हम नहीं करेंगे। अपने अगर मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हो आप लोग, तो आप लोग ने ये देखा होगा we undertake to mark a lien and we will not further transfer his membership or raise any third party rights or endorse any alienation in the society records. स्क्रूटनी के समय सेक्रेटरी को ये देखना है कि उस मेंबर जो बेच रहा है, फ्लैट नंबर 101 वाला बेच रहा है, उसका कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज ना हो। उसको ये भी देखना है कि कोई स्टैट्यूटरी नोटिस ना हो फ्रॉम जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह, कोई कोर्ट ऑर्डर्स ना हो, कोई सेक्शन 88 का पेंडिंग रिकवरी ना हो उस फ्लैट ओनर के अगेंस्ट में, या कोई लीगल हायर का नोटिस वगैरह तो नहीं आके पड़ा हुआ। टिपिकली जब फ्लैट बेचने के लिए कोई निकालता है तो फॉर्म नंबर 20(1) जो ओनर है वो फिल करता है, और फॉर्म 20(2) जो लेने वाला है, खरीदार है, वो फॉर्म फिल करता है। जब ये आता है तो 20(2), 20(1) को स्क्रूटनाइज करके इमीडिएटली, अभी जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि फ्लैट ओनर ही तो है ना, नॉमिनी तो नहीं है, मॉर्गेज तो नहीं है, आउटस्टैंडिंग तो क्लियर है, स्टैट्यूटरी ड्यूज वगैरह तो नहीं है, कोर्ट केसेस तो नहीं है, 88 का कोई एक्शन तो पेंडिंग तो नहीं पड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह देखना, इमीडिएटली देखना उसको। और अगर उसे लगे कि ये सब में एक प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली फॉर्म 20 वाला एक जो एड्रेस लिखा हुआ है और फॉर्म 20(2) का एड्रेस जो लिखा हुआ है, उसको प्रॉपर नोटिस दे के बोलना चाहिए कि भाई ये चीज़ का लिखना है, ये मेंबरशिप हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फ्लैट या तो मॉर्गेज है, या तो इसमें कोर्ट का कुड़की आके पड़ा हुआ है, कुड़की में ऑप्शन नोटिस पड़ा हुआ है, या एक्सटेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है, या स्टे ऑर्डर पड़ा हुआ है वगैरह। हो सकता है लीगल हायर के नोटिस आके पड़ी हो, कोर्ट ऑफ नोटिस, कोर्ट के सम्मन्स आके पड़े हुए वगैरह हो। तो ये सारी चीज़ें देख के लेने वाले को और बेचने वाले को इन्फॉर्म करना। अगर ये सारा चीज़ हो जाता है तो जो लेने बेचने वाला है वो अपना एग्रीमेंट रजिस्टर करेगा। सोसाइटी के सेक्रेटरी का काम है ये देखने का कि भाई वो एग्रीमेंट प्रॉपरली स्टैम्प ड्यूटी पेड है, फिगर देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी पेड है ये देखना जरूरी है। अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट, नॉन स्टॉम्प ड्यूटी पेड एग्रीमेंट, तो सोसाइटी को एंटरटेन नहीं करना है, इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो ट्रांसफर के वक्त क्या क्या फॉर्म लगने वाला है? प्रोमिनेंटली 4 नंबर, 21 नंबर, 23 नंबर, और कोई फॉर्म की जरूरत नहीं। कई लोग फॉर्म नंबर 25 देते हैं वगैरह वगैरह, और कोई भी फॉर्म की जरूरत नहीं है उसके अंदर। अब सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी का ड्यूटी क्या पड़ा कि ये सारी चीज़ों को लेके सेक्रेटरी ब्रीफ करता है, to discuss and brief the managing committee members of the transfer file and endorse this particular file। तो मेंबरशिप ट्रांसफर को मैनेजिंग कमेटी में अप्रूव करना है, रिकॉर्ड करना है रेजोल्यूशन में। एक बार रेजोल्यूशन रिकॉर्ड हो गया तो INJ रजिस्टर, मेंटेनेंस बिल एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ द सोसाइटी में रिकॉर्ड करना है। अगर मॉर्गेज है तो मॉर्गेज फाइल में एंडोर्समेंट करना है सोसाइटी के सेक्रेटरी के सिग्नेचर और ठप्पे के अंदर। एक और लाइबिलिटी है मैनेजिंग कमेटी का, वो है AGM का। दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी। AGM करना ही करना है, इसका कोई बहाना वगैरह नहीं है। अगर आप AGM किसी कारण से नहीं कर पाते हो तो कानूनन ढंग से आप पर पेनल्टी भी है 5,000 रुपये का, और आप 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हो।
एजीएम के प्रिपरेशन के लिए कौन सा सेक्शन जिम्मेदार है? एक है सेक्शन 75, एक है सेक्शन 81 81, एक है सेक्शन 82 82। तो 75, 81 एंड 82। सेक्रेटरी का काम है एजीएम का एजेंडा ड्राफ्ट करे, नोटिस एजेंडा ड्राफ्ट करे, अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करे, ट्रेजरर की कोऑर्डिनेशन में, अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट की, आते साल का फाइनेंशियल बजट प्रोजेक्शन प्रिपेयर करना, आते साल का फाइनेंशियल बजट प्रोजेक्शन प्रिपेयर करना। 90% ऑफ द सोसाइटीज आर नॉट डूइंग दिस थिंग। अगर ये जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ उसमें से एक भी आपने नहीं किया हुआ है तो यू बिकम लायबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिबारमेंट फॉर 5 years। आप 5 साल के लिए फर्दर इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे, लेकिन आप पर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का स्कोप नहीं बनता है। सो अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, आते वाले साल फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट प्रोजेक्शन बनाना है, चेयरमैन का ईयरली वर्किंग रिपोर्ट बनाना है, मेंबरशिप ट्रांसफर लिस्ट बनाना है, उसके बाद में अकाउंट्स को ऑडिट के लिए देना है, उसके बाद में ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट ओ फॉर्म बनाना है वगैरह वगैरह। और बाकी नोटिस एजेंडा में और जो आइटम हो सकता है या ध्यान रखना की चीज़ है वो है अमेंडिंग द बायलॉज को अमेंड करना है। अगर तो सेक्रेटरी मन में सोच सकता है कि हाँ ये पर्टिकुलर क्लॉज है, जैसे मैंने बताया ये लेक्चर सिर्फ प्रूडेंट लोगों के लिए है, बदमाश मैनेजिंग कमेटी मेंबर जो एरोगेंट और इगोइस्टिक है ये उनके लिए नहीं। तो अगर ऐसा कुछ है तो अमेंडिंग बायलॉज का भी प्रोविजन रखना चाहिए। हर एजीएम में रखो, कुछ छोटा मोटा चेंजेस करते हो, नया शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का भी एजेंडा रख सकते हो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मंथली बिल्स का भी एजेंडा रख सकते हो, मेजर सिविल रिपेयर्स, पेंटिंग, ओवरहाउलिंग लिफ्ट्स, installation of solar system or overhauling it, mobile towers, appointing limited purpose subcommittees. This I will always highly recommend that society should always appoint subcommittees. It helps in thousands of ways. उसके बाद में ये सारे स्टैट्यूटरी चीज़ें हैं, नहीं तो इसका पनिशमेंट है। इसके लिए जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप इतना मिनिमम करो, और जो ट्रबल शूटिंग मेंबर्स के चिट्ठी पत्र आते हैं, व्हाट्सएप्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, फला ढिकाना आते हैं, उसका सब इग्नोर कर दो इजीली, इज नो प्रॉब्लम, उसका आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है एजीएम का या एसजीएम में स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग का आपका मिनट्स बनाइए। मिनट शुड बी वेरी कंसाइज एंड ब्रीफ। ऐसा नहीं है कि एक मेंबर ने 15 मिनट बोला तो वो 15 मिनट का ट्रांसक्रिप्ट उठा के आप अपना मिनट्स में दाखिल कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू शुड नेवर एवर राइट लॉन्ग स्टोरीज और एसेज। अगर कोऑपरेटिव कोर्ट में जाने की नौबत आती है तो यही सब लॉन्ग स्टोरी और एसेज आपके विरुद्ध जाएंगे और केस और लंबा खींचता जाएगा, जो आपका पर्पज नहीं होना चाहिए। सो मिनट्स विल बी फर्स्ट अप्रूव्ड इन एन एमसी मीटिंग। एमसी मीटिंग बोलता है कि ठीक है सब कुछ है, यू कैन सेंड इट टू जनरल बॉडी मेंबर्स, the hard copy or the soft copy via your society social media, और सोसाइटी जनरल बॉडी का एक्नॉलेजमेंट पे सिग्नेचर लेना जरूरी है। और ये एक्नॉलेजमेंट भी सोसाइटी के फाइल्स में, एजीएम फाइल्स में प्रिजर्व करना जरूरी है। फ्यूचर में अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो यही सारी चीजें काम आती है। एवरी पॉजिटिव और नेगेटिव रेजोल्यूशन must compulsorily be proposed by Anil Sharma, seconded by Rakesh, flat number bracket में लिखो, proposed by Anil Sharma, flat number 101, seconded by Rakesh, flat number 201, and it should be, अगर नेगेटिव है तो लिखो उधर रिजेक्टेड, और अगर पॉजिटिव है तो आप ये लिखो पास्ड यूनानिमसली और विथ माइनॉरिटी ऑब्जेक्शंस और विथ मेजॉरिटी वोट। इट इज ऑलवेज हाईली रिकमेंडेड कि आपका जो एजीएम और एसजीएम है उसको वीडियो रिकॉर्ड करो। प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डर को बुलाइए, अपने घर का कैमरा या मोबाइल कैमरा यूज ना करो, वीडियो एजेंसीज को बुलाओ, वो 2-5 हज़ार लेगा, बिल देगा, उसके पास भी रिकॉर्ड रखेगा, वो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड भी देगा। अगर मिस्टेक हो जाता है तो मिस्टेक उसके गले पे डाल सकते हो कि मैं उसे रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्डिंग लॉस्ट हो गया वगैरह वगैरह। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर
consultants, lawyers, PMCs, project management consultant, architects, AMCs, annual maintenance contractors, and other contractors, छुट्टा पुट्टा कोई कॉन्ट्रैक्टर। आप ये सारे के सारे आप एक पैनल भी बना सकते कि भाई पीएमसी का एक पैनल बना रही है, आर्किटेक्ट का एक पैनल बना, उसी में से हम बुलाएंगे। यू कैन डिसाइड, मेंबर्स में कंट्रीब्यूट देयर ओन पहचान वाला कि भाई ये मेरा पहचान वाला एएमसी वाला है, लिफ्ट वाला एएमसी वाला है, एसटीपी प्लांट का एएमसी वाला है, यू नो ऑल दोस थिंग्स। सो दिस हैज टू बी डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड एंड अप्रूव्ड and define the purposes why you are appointing them, set up their fee limits, and this should all be done in a general body meeting. Managing committee at their own discretion may scrutinize proposals, interviews, and appoint. Without GP approval, fees resolution should not be done. आप बाकी सब कर लो, लेकिन उसका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो जनरल बॉडी में डिस्कस करना, डिसाइड करना ज़रूरी है। और अगर आपके पास बहुत से लोगों का प्रपोजल आ जाता है, कंसल्टेंट्स का मतलब में 10 प्रपोजल आ गया, तो उसका एक कंपैरेटिव शीट बनाइए, कंपैरेटिव कोटेशन से शीट बनाइए, जनरल बॉडी के सामने रखिए और उनका अप्रूवल लीजिए। ऑल दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग अवे और गेटिंग एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम allegations of fund mismanagement or misappropriations. General body members are entitled to view and obtain copies of such appointments, fee vouchers, and proceedings. However, general body members are not entitled to question or dictate on such appointments or fee vouchers. कॉपी ले सकते हो आप, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि वाउचर में ऐसा क्यों लिखा, ऐसा लिखना चाहिए था, वगैरह वगैरह। अगर जनरल बॉडी मेंबर अगर एग्रीव्ड है तो वो कंप्लेंट मैनेजिंग कमेटी को नहीं दे सकता है। मैनेजिंग कमेटी का अधिकार नहीं है ये सब चीज़ों से डील करने का, लेकिन जनरल बॉडी का अपना कंप्लेंट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को पक्का दे सकता है। सरकारी तौर तरीके से वो काम होगा, जनरल बॉडी मैनेजिंग कमेटी को बुलाया जाएगा और जो लीगल प्रोसीजर होगा वो करा जाएगा। इसमें भी जनरल मैनेजिंग कमेटी मेंबर को चिंता करने वाली कोई बात नहीं होती है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर रखा हुआ है तो जस्ट सेंड योर मैनेजर एज मच एज पॉसिबल। द मैनेजिंग कमेटी should not get involved themselves personally in all these matters. Send your lawyer or send your manager. अगर कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार बोलता है कि लिखित रिप्लाई फाइल करो, रिटर्न आर्ग्यूमेंट, तो आप फाइल करो, यू कैन सेंड इट वाया योर मैनेजर, देयर इज नो हिच इन डूइंग सो, इट इज परफेक्टली लीगल। कई बार मेंबर्स चिल्लाते हैं कि मैनेजिंग कमेटी बायलॉज में 1 लाख रुपए खर्चा करने का प्रोविजन है, उससे ज़्यादा खर्चा कर दिया जनरल बॉडी के अप्रूवल के बगैर। तो आई विल डिस्क्राइब टू यू कि हाउ टू सेफली स्पेंड over 1 lakh rupees in contrary to the bylaw. जो भी bylaw नंबर है इस समय मुझे याद नहीं है। Many times managing committee spends over the bylaw prescribed spending limit of 1 lakh without approval of general body. Is this legal? It is legal if it is spent for legitimate purposes. Proper bill and voucher signed by 2-3 persons. एक पर्सन है, मैनेजर हो गया, ट्रेजरर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, या तो चेयरमैन हो गया, या तो कोई एक डेलीगेटेड मैनेजिंग कमेटी मेंबर हो गया, चेक पेमेंट किया हुआ है, टीडीएस काटा हुआ है, सब्सिक्वेंट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग नेक्स्ट आने वाले मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में ये खर्चा अप्रूव किया हुआ है, और अगर आप ये प्रूव कर लेते हो कि जो स्पेंडिंग किया हुआ है इट वाज एसेंशियल एंड एन एसेट, इट वाज एसेंशियल in the overall interest of the society and it was an asset which is available in the society premises. Asset का मतलब है मानो आपने एक कंप्यूटर खरीद लिया 2 लाख रुपए का विदाउट जनरल बॉडी अप्रूवल, लेकिन वो एसेट सोसाइटी के ऑफिस में अवेलेबल है, आपके बैलेंस शीट में भी दिख रहा है, आप उस पर डिप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहे हो आते मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में। ऑडिटर भी बोलता है कि ठीक है वाउचर में 2 लाख रुपया दिख रहा है,
बिल भी अवेलेबल है, चेक पेमेंट भी किया हुआ है, टीडीएस भी काटा हुआ है, जीएसटी भी पेड है। सोसाइटी के ऑफिस पे एसेट फाइल में मैंने देखा है, एसेट रजिस्टर में देखा है, वहां पर भी वो चीजें सारी दर्ज है। So all these things will not be termed as misappropriation or eating of society funds. मतलब आपने 1 लाख रुपए के ऊपर खर्चा कर दिया, 5 लाख रुपए खर्चा कर दिए विदाउट जनरल बॉडी अप्रूवल, लेकिन वो एसेट सोसाइटी के प्रीमिसेस में मौजूद है, उसका टीडीएस टैक्स डिडक्टेड सोर्स, उसका जीएसटी बिल है, चेक से दिया हुआ वगैरह वगैरह, तो सारा कुछ अगर है तो वो मिस अप्रोप्रिएशन नहीं होता, बट इट विल बी ओनली टर्म्ड एज, देखिए वो जो 1 लाख रुपए का जो लिमिट का पैरामीटर है वो सिर्फ और सिर्फ बाय लॉ में दिया हुआ है, इट इज नॉट गिवन इन द एक्ट एंड रूल्स, सो यू आर नॉट एक्चुअली वायलेटिंग, आप कानून कायदे का उल्लंघन नहीं कर रहे, बाय लॉ का उल्लंघन कर रहे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या कहलाएगा कि प्रोसीजर्स वेयर नॉट फॉलो और बाय लॉज वेयर नॉट फॉलो। So how is this MC protected? It is protected under section 2(27), wherein it is the administrative and governing body having autonomous function, and further it is further protected under section 71, which says कि अगर आपने गुड फेथ में ये सारा खर्चा किया हुआ है और ये सारे डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर्स अवेलेबल है और बैलेंस शीट में भी दर्शाया हुआ है, तो इट विल नॉट बी काउंटेड एज मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया हुआ है तो वो कोई बड़ा गुनाह नहीं है, ना ही कोई छोटा गुनाह भी है। ओके, मेजर रिपेयर, सिविल्स और पेंटिंग्स, ये सबसे बड़ा आइटम है जो ट्रबल मेकर मेंबर्स सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के विरुद्ध उठाने को हमेशा देखते रहते हैं कि इसमें ऐसा किया, उसमें ऐसा किया वगैरह वगैरह। तो इसमें छोटा सा प्रोसीजर करिए, कोई बड़ा चीज नहीं है। Managing committee has to take prior GB approval via prior notice agenda। उस चीज का मेजोरिटी जीबी से रेजोल्यूशन पास करो फॉर एनी मेजर रिपेयर्स लाइक सिविल वर्क्स, जैसे प्लास्टरिंग हो गया, कोई दीवार टूट गई है या पानी की टंकी रिपेयर करना है वगैरह वगैरह, और पेंटिंग्स है, एंड फंड सैंक्शन करवाइए। अब वो फंड सैंक्शन कौन सी चीज से यूज करना है, अपना जो सिंकिंग फंड, रिजर्व फंड और रिपेयर फंड या और कोई फंड सोसाइटी में मौजूद है क्या उसको यूज करना है, अगर या कोई हर महीने मेंबर से लेना है क्या, वो पास करवाइए वगैरह वगैरह। और अगर सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड वगैरह करना है तो उसमें आप रेजोल्यूशन पास करवाइए कि जनरल बॉडी हैज गिवन यू परमिशन टू विड्रॉ सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड बाय लिक्विडेटिंग द सोसाइटी एफडीआरस। ये रेजोल्यूशन जनरल बॉडी के मिनट्स में दर्शाना जरूरी है, क्योंकि वही रेजोल्यूशन का एक्सट्रैक्ट आपको बैंक में देना है, और ये सेम रेजोल्यूशन आपको ऑडिटर भी पूछने वाला है। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आपको प्रॉपर रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए मेजर सिविल रिपेयर्स करने के लिए। ये नहीं है कि मेरी मर्जी से कर दिया, जनरल बॉडी का अप्रूवल ले लिया कि भाई 5,000 स्क्वायर फीट को प्लास्टर करना। यू आर नो अथॉरिटी, जनरल बॉडी मेंबर्स आर नो अथॉरिटी टू डिसाइड कि 5,000 स्क्वायर फीट होता है कि वो 3,500 होता है या 50 स्क्वायर फीट होता है। ये काम सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का ही है, जो वो ये बोलेगा कि भाई आपके सोसाइटी में, बिल्डिंग में फला रिपेयर्स करना है, इस तरह का पेंटिंग करना है, ये वाला पेंट लगाना है, यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर ये पेंट लगाना चाहिए, बाहर का ये पेंट लगाना चाहिए वगैरह वगैरह। इट इज द ड्यूटी ऑफ द आर्किटेक्ट टू इनवाइट टेंडर्स। आप ये ध्यान रखें कि आप मैनेजिंग कमिटी members cannot invite tenders. The tenders are to be invited under the seal signature of the architect from contractors. Prepare comparative quotation sheet. Managing committee will not prepare this comparative quotation sheet. Managing committee को ये responsibility नहीं लेना चाहिए। जहाँ लिया वहीं पे ये misappropriation of funds allegations शुरू हो जाने वाला है। Managing committee should put such report and comparative quotation sheet for consideration, discussions and resolution of general body, and then only start work. Managing committee has to ensure that the contractor takes out what is called as typically group insurance policy
इट शुड एंश्योर कि बिल में टीडीएस डिडक्ट करके दिया जा रहा है। इट शुड एंश्योर कि भाई बिल्स जो आ रहे हैं वो जीएसटी बिलिंग होनी चाहिए। लेक्चर कुछ लंबा होता जा रहा है तो आई विल कट शॉर्ट फ्यू पॉइंट्स, और कभी मौका मिला तो फिर करेंगे। मैनेजिंग कमेटी का एक बहुत बड़ा दायित्व है, अगर आपके सोसाइटी में कोई गैर कानूनी अल्टरेशंस या कंस्ट्रक्शंस कर रहा है, या टॉयलेट बाथरूम को शिफ्ट कर रहा है, या किचन को शिफ्ट कर रहा है, या नीच एरिया को या डक्ट एरिया को अंदर बाहर ले लिया हुआ है, तो मैनेजिंग कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इन्फॉर्म द बीएमसी and the fire department and the police about any such illegal and unauthorized alterations and constructions in CHS and in members' flats. Otherwise, this is important, very important. Otherwise, managing committee members, all the members, especially the secretary, becomes involved in prosecutions and penalties. इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें डेप्यूटी रजिस्ट्रार यानी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार का कोई भी रोल नहीं है। जनरल बॉडी के मेंबर जो रजिस्ट्रार के ऑफिस भागते रहते हैं, ये कंप्लेंट करने के लिए, वो कंप्लेंट करने के लिए, रजिस्ट्रार का इसमें कोई रोल नहीं। इसमें रोल किसका है? बीएमसी, फायर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है मैनेजिंग कमेटी का रिकवरी प्रोसीडिंग्स का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू विद इन द टाइम लिमिट्स. If there is no dispute raised by a defaulter member, then file before Deputy Registrar under section 124B-29, पुराना जो हुआ करता था 101, और अगर डिस्प्यूट रेज किया हुआ है मेंबर ने, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर डिस्प्यूट रेज किया हुआ है तो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है। सॉरी, अगर डिस्प्यूट रेज नहीं किया हुआ है तो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है रिकवरी प्रोसीडिंग्स। अगर मेंबर बोलता है कि मैं डिस्प्यूट करता हूं और कारण देता है तो आपको फाइल करना है कोऑपरेटिव कोर्ट में अंडर सेक्शन 91। कई लोगों का ये मानना है कि पुराना 101 सोसाइटी से खत्म हो गया है। ये गलत है, टोटली गलत है। पुराना 101 सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से निकल गया, मीन्स सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी से। लेकिन 101 सेक्शन जो है, प्रीमिसेस सोसाइटी है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, कमर्शियल सोसाइटीज है, एग्रीकल्चर, वहाँ पे सारा 101 ही लागू पड़ता है। वहाँ पे ये 154B-29 नहीं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला सेक्शन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर के लिए अलग से बनाया हुआ है। इट इज एक्चुअली ए कॉपी पेस्ट। जो कुछ 101 में लिखा हुआ है वो इस 124B-29 में भी लिखा हुआ है। सिर्फ एक और दो एडिशनल एडिशंस कर दिया हुआ है। 101 में ऑक्यूपेंट को नहीं इन्वॉल्व किया हुआ है, खाली ओनर्स को इन्वॉल्व किया हुआ है। लेकिन ये वाले सेक्शन में ऑक्यूपेंट्स को भी इन्वॉल्व कर दिया। ऑक्यूपेंट्स का मतलब है अगर मानो ओनर गुजर जाता है, उसके भाई बंधु रह रहे हैं या चाचा मामा भांजा रह रहा है और वो मेंटेनेंस का बिल नहीं देता वगैरह, तो वो ऑक्यूपेंट कहलाता है, उसके खिलाफ भी आप फाइल कर सकते हो। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, अभी जो बता रहा हूँ कि एमसी इज लायबल फॉर फेलियर to file recovery proceedings and causing loss to housing society. This is classified as negligence, deficiency and omissions which is detrimental to the interest of the society. कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 73(1) के अंदर 73(1). लालच में कि भाई हमें तो 21% इंटरेस्ट मिल रहा है, या मैनेजिंग कमेटी सुस्ती कर रही है कि नहीं क्या फाइल करना, अपनी दोस्त हैं, अपने को तो 21% इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या करना है फाइल करके। ये सारा सोच के अगर मैनेजिंग कमेटी रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल नहीं करती और किसी कारणवश ये टाइम बार्ड हो जाता है, या किसी कारणवश डिफॉल्टर का अमाउंट रिकवर नहीं हो पाता है और ऑडिटर ने ये रिमार्क लगा दिया कि भाई इट इज नॉन रिकवरेबल फॉर सर्टन रीजंस, देन इसका जो पैसा है रिकवरी प्रोसीडिंग्स का या रिकवरी अमाउंट का, वो मैनेजिंग कमेटी को अपने जेब से देना है, क्योंकि वही कहलाता है कॉजिंग लॉस टू सोसाइटी ड्यू टू देयर इनएक्शंस, नॉन एक्शन मतलब नेग्लिजेंस किया, सुस्ती में बैठे रह गए, डेफिशिएंसी किया, काम नहीं किया वगैरह वगैरह। एक पैराग्राफ में फिर से रिपीट करूंगा कि आज का लेक्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईमानदार, प्रूडेंट
ईमानदार मीन्स प्रूडेंट, एंड हम्बल एमसीज के लिए, जो शांत स्वभाव के लिए, हु वांट टू कंडक्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू लॉ, हु डू नॉट वांट टू बी, अगर किसी को एरोगेंसी से कंडक्ट करना है, एडिमेंसी से, स्टूपिडिटी लेके आना है, इगोइस्टिक बने रहना है, एंड दे आर नॉट ऑनरेबल। ओके, एंड जो कोई बोलता है कि हम तो सोसाइटी के मेंबरों के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर आज के उनके लिए नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं गिना देता हूँ। मोस्ट मैंडेटरी एंड स्टैट्यूटरी लायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज पनिशेबल बाय प्रोसिक्यूशन एंड पेनल्टी and fine. Hence, this should not be ignored under any circumstances. Managing committee meetings, ये सारी चीजें जो आपको बता रहा हूँ, ये स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी है, कानूनन आपको करना ही करना है ये। अगर आप नहीं करते हो तो आप पर प्रोसिक्यूशन भी होगा, आप डिबार भी हो सकते हो, और आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। और अगर आप अनलकी हुए तो आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो जाएगा, और अगर ज्यादा अनलकी रहेगा तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो जाएगा, और थोड़ा सा अनलकी रहे तो कंज्यूमर कोर्ट में भी मैटर पहुंच सकता है। सो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग कंपलसरी है, एजीएम करना कंपलसरी है, अगर रिक्वायर्ड जरूरत पड़े तो एसजीएम कंपलसरी करना जरूरी है। अकाउंट्स को फाइनलाइज करना है 4 महीने के भीतर अकाउंट आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने, आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को, तो 4 महीने मतलब 31 जुलाई के पहले आपको अकाउंट फाइनलाइज कर देना है, ऑडिट के लिए भेजना है आपको तुरंत, और उसके 6 महीने के अंदर ही अंदर आपको एजीएम भी कंडक्ट करना है। मतलब 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर बंद होता है, तो आपको 30 सितंबर के पहले आपको एजीएम कंडक्ट करना है, ये मैंडेटरी है। सो योर ऑडिट को, अकाउंट्स को ऑडिट करना, ऑडिट रिपोर्ट लेना, एमसी वर्किंग रिपोर्ट बनाना, बजट प्रोजेक्शन रिपोर्ट बनाना, मेंबरशिप ट्रांसफर लिस्ट बनाना, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट यानी ओ फॉर्म, जो मैंने आपको पहले बताया सेक्शन 82 में, ये मैंडेटरी है। अपॉइंटमेंट ऑफ फोर्थ कमिंग, आते साल के फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑडिटर को अपॉइंट करना, और अगर कोई बायलॉ अमेंडमेंट का प्रपोजल रखा है तो वो करना। आपको एजीएम कॉल करना है विद इन 6 months ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आपका क्लोज होता है 31 मार्च को, और 6 महीना मतलब 30 सितंबर, ऑन और बिफोर 30 सितंबर को आपको एजीएम कंडक्ट करना कंपलसरी है। एजीएम कंडक्ट करने के बाद, उसके बाद 90 दिनों के अंदर ही अंदर आपको एजीएम की मिनट्स सारे लोगों को बांट देना है, या तो सोशल मीडिया से बांटना है या तो हार्ड कॉपी देके करें। मैनेजिंग कमेटी का सबसे बड़ा दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टैट्यूटरी रिटर्न्स फाइल करना, सरकारी रिटर्न्स फाइल करना, जैसे कि टीडीएस हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना, जीएसटी भरना, बीएमसी का प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, एनए टैक्स वगैरह वगैरह। एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी है मेंबरशिप ट्रांसफर फाइल्स को देखना वेरी वेरी केयरफुली, मॉर्गेज ना हो, नॉमिनी ने तो नहीं बेच दिया है, कोई सरकारी नोटिस तो नहीं है, वगैरह वगैरह। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, प्रिपेयर, इन्वेस्ट योर सिंकिंग फंड एंड रिपेयर फंड प्रॉपरली इन द बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट्स। आपको पता है हमने एक वेबिनार किया था कि आपके इन्वेस्टमेंट आप शेयर मार्केट में भी कर सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी कर सकते हो, बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स में भी कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हो। लेकिन ये सारे चीजों के लिए आपको जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। ऑर्डिनरीली, साधारण तौर पे सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड का फिक्स डिपॉजिट करना मैनेजिंग कमेटी के हद के अंदर है, इसमें जनरल बॉडी का कुछ लेना देना नहीं हो सकता। उसके बाद में आपके जो सोसाइटी के रिटर्न्स हैं, जैसे ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट बोला, जैसे मिनट्स बोला, वो आपको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के वेबसाइट में अपलोड करना है थ्रू योर ऑडिटर, और थ्रू योर अकाउंटिंग एजेंसी, और थ्रू योर मैनेजर। ये एक ध्यान रखना जरूरी है कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस देयर शुड बी एनी वायलेशंस इन द सोसाइटी प्रीमिसेस, इन द मेंबर्स फ्लैट्स, अंडर, मतलब कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, खास करके ये कानून जैसे कि बीएमसी हो गया, फायर एक्ट हो गया, एमआरटीपी एक्ट हो गया, ट्री एक्ट हो गया, वगैरह वगैरह। और अगर जरूरत पड़े तो सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी का दायित्व है स्ट्रक्चरल ऑडिट करना। स्ट्रक्चरल ऑडिट का बायलॉज में जो लिखा हुआ है उसको आप भूल जाइए, दैट इज इलीगल, इट हैज गॉट नो फोर्स ऑफ लॉ। बीएमसी एक्ट में लिखा हुआ है 30 साल की बिल्डिंग हो गई है, स्ट्रक्चरल ऑडिट करना है,
और उसके बाद में आपको हर 10 साल में स्ट्रक्चरल ऑडिट करना है। बायलॉज का कोई अहमियत और इस इम्पोर्टेंस नहीं है स्ट्रक्चरल ऑडिट के मामले को लेकर। हर सोसाइटी में अंदाजन 2 से 10 ट्रबल मेकिंग मेंबर्स होते हैं। टिपिकली दीज आर फॉर्मर पुराने मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स होते हैं जो करंट वाले इलेक्शन में सीट्स मैनेजिंग कमेटी के इलेक्शन हार जाते हैं। तो दे विल यूजुअली ट्रबल बाय राइटिंग सेवरल emails, complaints to society, deputy registrar for very small things. Such members have a chronic habit of trying to interfere, intimidate, demoralize या मैनेजिंग कमेटी को दबाने के लिए अपने आप को सेल्फ ग्लोरीफाई करना उनका मकसद होता है। उनका ऑब्जेक्टिव है कि मैं बड़ा हूँ, मेरा सुना जाना चाहिए, मेरा सोसाइटी में दबदबा बना रहना चाहिए। Such trouble-making managing committee members, such trouble-making general members of the society should be totally ignored. उनके ये सारे email complaints, registrar के complaints को ignore करो। If the MC is conducting and complying with the minimum statutory requirements, then there is no legal action possible on MCs. I'll repeat. अगर managing committee कानूनी तौर पे जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई करती है तो मैनेजिंग कमेटी के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये कानूनी कार्रवाई करने के लिए आप ऑडिटर को अपॉइंट करो, कोई लीगल एडवाइजर को अपॉइंट करो, मैनेजर को जिम्मेदारी दो, उसको काउंसिल करो, उसको ब्रीफ करो कि कैसे काम करना है, क्या करना है वगैरह वगैरह। आपका काम बहुत स्मूथली चलेगा। If the cooperative registrar tries to be funny, or intimidates to you, डराने धमकाने दबाने की कोशिश करता है और कोई वाकड़ा तिकड़ा यानी ऑकवर्ड ऑर्डर्स पास कर देता है, और अगर मैनेजिंग कमेटी को ये लगता है कि ऐसे ऑर्डर सोसाइटी के इंटरेस्ट के विरुद्ध में है, then society should keep on following up such things legally in appeals and revisions before higher courts, higher authorities, by taking approval of general body members in special general body meetings. Managing committee is a trustee and has to ensure the functioning of managing committee and has to also ensure, ये भी ध्यान रखना है मैनेजिंग कमेटी को कि सोसाइटी डज नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, उसका कामकाज में बाधा ना पड़े बाय दिस फ्यू ट्रबल मेकर्स। ये मैनेजिंग कमेटी का दायित्व है, बिकॉज मैनेजिंग कमेटी ट्रस्टी है। आप कुछ सोच के आए हो मैनेजिंग कमेटी में कि मैं सोसाइटी का कामकाज करूंगा या सेवा करूंगा या सोसाइटी को ढंग से चलाऊंगा। आई विल वंस अगेन रिपीट, मैनेजिंग कमेटी शुड नेवर एवर गेट इन्वॉल्व्ड in coordinating with members in any manner. Let the manager handle all such members' requirements. इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजिंग कमेटी को मैं ये सलाह देता हूँ कि साधारण मेंबर से इंटरैक्शन, बातचीत, ये वो सारा चीजें टोटल बंद कर दीजिए। आपने प्राइवेट ईमेल पे अगर मेंबर का कोई कंप्लेंट आता है तो ईमेल आपका ब्लॉक कर दीजिए, सोसाइटी का ईमेल पे आने दीजिए, उसको हैंडल करने दो मैनेजर को। मैनेजर को ब्रीफिंग करो मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग के वक्त कि भाई आपका ये चीज है। मैनेजर को एक चेकलिस्ट बना के दे दो कि भाई तेरा महीने का काम में ये सारा चीजें इन्वॉल्व है। अगर आप सिस्टम से काम करोगे, सरकारी सारा कंप्लायंसेस करोगे, तो ये जो ट्रबल मेकर मेंबर्स के जो डिमांड्स हैं, लेटर बाजी वगैरह, आप टोटली उसको इग्नोर कर सकते हो। उसको भागने दो, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखने दो, और जैसे मैंने बताया अगर आपको लगा कि छोटी मोटी चीज है तो चलो ठीक है भाई दे दिया कागज, नहीं है तो रजिस्ट्रार के चिट्ठी के विरुद्ध में या ऑर्डर के विरुद्ध में आप अपील करो, रिवीजन करो। अपील रिवीजन करने का मतलब ये है कि आपको 2, 5 साल 8 साल ऐसे ही निकल जाता है। आपका काम है, दायित्व है मैनेजिंग कमेटी और सोसाइटी को व्यवस्थित चलाना। आई रिपीट वन मोर थिंग, मैनेजिंग कमेटी शुड स्ट्रेटेजिकली रिमेन नॉन रीचेबल टू जनरल सोसाइटी मेंबर्स and may interact, but may interact to the point only in AGM and SGMs. हर रोज आप इंटरेक्ट करोगे तो आप अपने दिमाग को टेंशन देने वाले हो, आपका ध्यान हटेगा कामकाज से,
आप परेशान हो जाओगे। और यही कारण है कि इलेक्शन के कुछ दिनों के बाद से एक एक मेंबर छोड़ना शुरू कर देते हैं। को बहुत त्रास होता है, ज्यादा टेंशन हो रहा है, कौन झंझट सहन करेगा, ये वो झंझट आप पालते हो तभी आपको सहन करना पड़ता है और तभी आप परेशान होकर छोड़ देते हो। आपको ये बता दूं कि जनरल मेंबर्स की लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स जो है वो बहुत बहुत सीमित है, बहुत बहुत लिमिटेड, कोई बड़ा उसमें राइट्स है ही नहीं। Why do managing committee members resign very early and before end of term? Or why managing committees get dissolved? Or why administrator is appointed in societies? सबसे बड़ा कारण है सुस्ती, एपैथी, काम नहीं करना है वगैरह वगैरह। मैं मैनेजिंग कमेटी मेंबर हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, ऑल दोस रुबाब वाले शब्द, वो तो साधारण जनरल बॉडी के ही मेंबर चुन के आ गए हो, अगली बार नहीं चुन के आओगे, साधारण मेंबर फिर से बन जाओगे। रुबाब किस चीज का था? कोई दूसरा कारण होता है कि भाई मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम कानून का जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरा नहीं कर पाते। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, एजीएम करना वगैरह वगैरह करना, ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट है, टीडीएस भरना है वगैरह। कई लोग मैनेजिंग कमेटी में जोश के कारण ज्वाइन कर लेते हैं रुबाब दिखाने के लिए, बाद में थोड़े समय के बाद में लगता है कि अरे मैनेजिंग कमेटी का काम तो बहुत तकलीफजनक है, या तो जनरल मेंबर्स हैरास करने के फिराक में लगे रहते हैं, या मैनेजिंग कमेटी को दबाने के लिए लगे रहते हैं वेरियस डिमांड्स के साथ में। अगर सोसाइटी छोटी है या बजट सोसाइटी का कम है तो सोसाइटी का मैनेजर को फिर भी कैसे भी करके अपॉइंट करो, भले फुल टाइम अपॉइंट करो या पार्ट टाइम अपॉइंट करो, या हफ्ते के लिए 2 दिन के लिए अपॉइंट करो, या सिर्फ 2 घंटा पर डे के लिए अपॉइंट करो, लेकिन मैनेजर को सारे कामकाज को हैंडल करो। आप बीच में इन्वॉल्व, मैनेजिंग कमेटी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व। सोसाइटी के सेक्रेटरी मैनेजिंग कमेटी को एक चेकलिस्ट बना के देने दो मैनेजर को कि भैया आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, सारे रजिस्टर्स को सीक्वेंस में रखना है, लेबल रखना है, नंबरिंग करना है, मेंबर के ट्रांसफर फाइल्स आएगी तो ये चेकलिस्ट है, इसके अंदर ये सारा देख के फाइल में अपना रिमार्क डालो, मेंबरशिप का ट्रांसफर का फीस आया है या नहीं आया हुआ है, नॉमिनेशन नॉमिनी तो नहीं कर रहा दोबारा, ये सारा उसको प्रिंट कर दो। कोई बड़ी बात नहीं, इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल। मैनेज सोसाइटी को चलाना कोई बिल्कुल भी डिफिकल्ट काम नहीं है अगर आप मैनेजर के थ्रू चला रहे हो तो। या तो मैंने जैसे अर्लियर बनाया, सब कमिटीज अपॉइंट करो, सब कमिटीज को काम करने को दिया करो, आप वही सब कमेटी के मेंबर आपके नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स बनने के योग्य बनते हैं। उन्हीं मेंबरों में से आप कोऑप्शन प्रोसीडिंग्स करो। आपको लगेगा कि देखो सभी 5 सब कमेटी मेंबर बने हुए हैं, वैकेंसी आई है, तो इन्हीं में से किसी को तुरंत पॉप कर सकते हो आप, क्योंकि वो कामकाज कुछ सीख जाता है। डिफॉल्टर को, मैनेजिंग कमेटी का काम है डिफॉल्टर को किसी भी प्रकार का एनओसीज नहीं देना है, शेयर सर्टिफिकेट रिप्लेस नहीं करना है। अगर डिफॉल्टर है तो होल्ड करो उसको जब तक वो पेमेंट नहीं कर। कोई भी डिफॉल्टर को, मैनेजिंग कमेटी को ये ध्यान रखना है कि किसी भी कारणवश सर्विसेज और एम्यूनिटीज डिफॉल्टर को डिसकंटिन्यू नहीं करना है, नहीं करना है। मतलब पानी उसका बंद नहीं करना है, बिजली बंद नहीं करना है, स्वीपिंग सर्विसेज बंद नहीं करना है, पार्किंग बंद नहीं करना है, अगर लीकेज हो रहा है तो रेक्टिफाई करना है, ये सब करना ही करना है आपको। ये नहीं बोल के आप बाहर हट सकते हो कि, लेकिन उसको सारे के सारे एनओसी, उसके एप्लीकेशंस वगैरह सब जो आते हैं तो सारा का सारा इग्नोर कर दो। डेप्यूटी रजिस्ट्रार यानी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार का जो अथॉरिटी है वो भी बहुत लिमिटेड रहता है, प्रोवाइडेड मैनेजिंग कमेटी अपना सारा मिनिमम कानूनी रिक्वायरमेंट पूरा करते रहता है अपने मैनेजर के थ्रू या अपने सब कमेटी मेंबर के थ्रू या कोई एक पर्टिकुलर मैनेजिंग कमेटी। तो अगर रजिस्ट्रार अगर आपको डिसमिसल ऑर्डर भी देता है कोई छोटे मोटे या गलत रीजन से, जो आपको लगता है गलत है, तो मैनेजिंग कमेटी को मैं ये सलाह देता हूँ कि आप अपील फाइल करो, रिविजन्स फाइल करो, कोर्ट लेकर जाओ, बट ये सब ऑर्डरों के चक्कर में ना पड़ो। डोंट फॉल प्रे टू सच रजिस्ट्रार्स ऑर्डर्स, क्योंकि उसका अथॉरिटी लिमिटेड रहता है। और जब तक आपको, जैसे मैंने बताया कि एक बार आप अपील या रिविजन फाइल करते हो तो वो सालों साल गुजर जाते हैं। आपका मैनेजिंग कमेटी का दायित्व है सोसाइटी को चलाना, सोसाइटी को एडमिनिस्ट्रेटर को सौंपना नहीं है जस्ट बिकॉज कि
कुछ ट्रबल मेकिंग मेंबर्स आपको परेशान कर रहे हैं। जनरल मेंबर्स का राइट्स बहुत लिमिटेड है। पहले एक सेक्शन हुआ करता था 32, सेक्शन 32, लेकिन जुलाई 2019 के बाद में वो सेक्शन को बदली करके कर दिया गया हुआ है। हाउसिंग सोसाइटी के लिए नया सेक्शन किया 154B-8, उसमें आप लिमिटेड पर्पस डॉक्यूमेंट्स वो मांग सकता है। क्या क्या मांग सकता है? ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स ओनली, एक्ट की कॉपी, रूल्स की कॉपी, बायलॉज की कॉपी, पिछला ऑडिटेड बैलेंस शीट की कॉपी, अकाउंट्स बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ कमिटी, ए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मिनट्स ऑफ जनरल बॉडी, मिनट्स ऑफ कमिटी, और उसका अकाउंट बुक्स जहाँ पे उसके खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है। दूसरे मेंबर का ट्रांजेक्शन को वो नहीं पूछ सकता। अगर उसको पूछना है तो लेट डेप्यूटी रजिस्ट्रार को इंस्पेक्शन के लिए डाले अर्जी, और फिर बाकी जो कार्यवाही करना है वहाँ पे उसे करने दिया जाए। जनरल बॉडी का जो अधिकार है वो लिमिटेड है, जैसे मैंने आपको बताया। वो क्या क्या है? वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, वो वोट कर सकता है, उसको ऑक्यूपेंसी राइट्स हो सकता है, वो नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, वो सोसाइटी के सर्विसेज और एम्यूनिटीज को यूज कर सकता है ऑन पेमेंट बेसिस, जनरल बॉडी मीटिंग्स अटेंड कर सकता है, वो ही कैन बिकम ए प्राइमरी मेंबर, जॉइंट मेंबर, एसोसिएट मेंबर, प्रोविजनल मेंबर, वो लीवर लाइसेंस में भी अपने आप को दे सकता है, वगैरह वगैरह। आई थिंक आई विल कंक्लूड बिकॉज ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। तो आई विल रिक्वेस्ट मेंबर्स कि अगर किसी को कोई प्रश्न है आज के लेक्चर के ऊपर तो प्लीज गो अहेड and let me know your questions please one by one. Mr. Paresh, one small question. Yes, हमारे पास आज वक्त थोड़ा कम बचा है। I understand सर। मेरे पास में हालांकि चार पांच क्वेश्चन है, बट एक छोटा सा ही पूछता हूँ सर। बजट प्रोजेक्शन रिपोर्ट जो आपने बताया सर, हमारी मैनेजिंग कमेटी ने आई थिंक आज तक किया ही नहीं है। सो दैट या ओ फॉर्म तो आज तक किया ही नहीं है सर, तो उस पर क्या कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो आज तक किया है सर हमारी मैनेजिंग कमेटी। एंड दिस नीड टू बी डिस्प्लेड टू और सर्कुलेटेड टू ईच एंड एवरी मेंबर सर। ईच एंड एवरी मेंबर का मतलब ये हो गया, आप ये कहना चाह रहे हो कि 5 मेंबर को देंगे और 10 मेंबर को नहीं देंगे? इसका मतलब ये भी हो गया कि वो बाकी मेंबर्स नहीं है? ऐसा नहीं है। सोसाइटी में जो भी कुछ करना है, अगर 100 मेंबर है तो सारे के सारे 100 मेंबर को देना है। अगर 10,000 मेंबर है तो सारे के सारे 10,000 मेंबर को देना है। अगर आपने जनरल बॉडी में ये रेजोल्यूशन पास कर दिया हुआ है, रिमेंबर दिस थिंग, अगर पास किया हुआ है कि ये सारी कॉपी हम सोसाइटी के सोशल मीडिया से देंगे, यानी सोसाइटी का खुद का वेबसाइट है तो अपलोड कर दो जी। अगर आपका वो जो 3-4 ऐप है, जैसे सोसाइटी हाइव करके है, अड्डा करके है, और एक दो और है, अगर उसमें अपलोड करने का है तो जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन में करो कि ये सारा ई कॉपी दिया जाएगा। जिसको हार्ड कॉपी की जरूरत है तो सोसाइटी में आके ऑफिस से हार्ड कॉपी पिकअप कर सकते। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बजट प्रोजेक्शन रिपोर्ट बनाया ही नहीं है सर, मेरा ये क्वेश्चन है। तो वो सोसाइटी में, जैसे बोला ना मैंने थोड़ा, क्या होता है कि सोसाइटी में लोग आ जाते हैं जोश में, मेरे को मैनेजिंग कमेटी में आना, मैं चेयरमैन हूँ जी, मैं सेक्रेटरी हूँ, रुबाब झाड़ना वगैरह वगैरह ऑर्डनरी बात है। तो ऐसे लोग सिर्फ आ जाते हैं कुर्सी में, लेकिन काम नहीं करना होता, जानकारी भी नहीं होती है। पैसा सोसाइटी का बचाना के ये सोच के बताना है कि अरे सोसाइटी का पैसा है, बचा बचा के खर्चा करना। सोसाइटी का पैसा बचा के रखने के लिए नहीं होता है ना। आपका ये कोई गुल्लक नहीं है, ये बैंक नहीं है कि पैसा मेंबर से लेना है और उधर जमा कर देना है। पैसा खर्चा करने के लिए पैसा होता है। अगर कोई ये सोचे कि मैं निचोड़ लूँ सारा का सारा, तो ये गलत चीज हो जाती है। अगर आपका बैलेंस शीट में पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब सोसाइटी के पास फंड्स है, आप मैनेजर अपॉइंट कर सकते हो और ये सारा काम मैनेजर के थ्रू कर सकते हो। मैनेजर को और प्लस आप फेडरेशन ट्रेनिंग देता है, आप ट्रेनिंग और एजुकेशन फंड भी तो दे ही रहे हो ना मेंबरों को, मेंबर से एजुकेशन फंड देते ही, बिल्कुल देते हैं। जब आप ट्रेनिंग लेने जाते हो या वो ट्रेनिंग देने आते हैं तो उनका काम है ये सारा चीज आपको बताने के लिए। और अगर आपके बैलेंस शीट में ये बताया हुआ है कि मैंने इस साल ये 100 रुपया एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड में स्पेंड किया हुआ है जी, और उसके बावजूद भी आपने ये बजट प्रोजेक्शन शीट या मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट नहीं बनाया हुआ है, तो आप डबल गुनहगार हो जाते हो। बिल्कुल, है ना। अगर कोई ट्रबल मेकर मेंबर है, वो आप चाहता है कि नहीं ये मैनेजिंग कमेटी को निकाल देते, उसको जानकारी है ये चीज की जो मैंने आपको अभी बताया जी।
तो आप आपको डॉक्यूमेंट बना के रखने में क्या तकलीफ है? आपके मैनेजर को अपॉइंट करो, कोई लीगल एडवाइजर को अपॉइंट करो, फ्रेंड सर्कल, व्हाट्सएप ग्रुप से, इतने तो सारे आजकल नेट के अंदर सारे अवेलेबल है। और प्लस ये खाली एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, जी या आपके बायलॉज में भी लिखा हुआ है एजीएम कैसे बराबर कंडक्ट करना है और उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ये तो जी अगर आपने ये सारा नहीं किया हुआ है तो मैं ये बोलूंगा मैनेजिंग कमेटी को कि भाई आप मैनेजिंग कमेटी छोड़ दो, ऐसे लोगों को आने दो जो काम कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, जो सेवा भाव से रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर सकते हैं। जी टाइम पास करने के लिए आना है तो नुक्कड़ में जाके खड़े हो जाओ, बिल्कुल बाकी बाकी लोगों को क्यों तकलीफ देना है आपको? बिल्कुल सर, You know, all this you have to think about. एब्सोल्युटली सर, So you instead of getting debarred, आप अगर डिबार्ड हो गए हो तो सोसाइटी ने इलेक्शन में 20-50 हजार रुपए खर्चा किया हुआ है ना, मेंबरों का खर्चा किया हुआ है, isn't it? एक इलेक्शन बिल्कुल फंड भी तो होता है जो आपको जमा बिल्कुल करना है और रखना है वहाँ पे। तो पैसा आपने बर्बाद क्यों किया, बराबर है, खराब क्यों किया? तो यू बराबर बिकम लाइबल फॉर डिबारमेंट ऑल्सो, डिसमिसल ऑल्सो। और ये सर, आपका जो अपोनेंट है वो खुश हो जाता है, वो खुश बिल्कुल होता है नहीं होता है वो छोड़ो, लेकिन आपकी सोसाइटी की तकलीफ हो जाती है। डिबार किया तो बिल्कुल रजिस्ट्रार बोलता है या तो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करूंगा मैं, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर आया तो उसका लिमिटेड काम करने का दायरा है, वो बड़े बड़े खर्चे नहीं कर सकता है, वो डिसीजन नहीं ले सकता है, ना तो मेंबरशिप के ट्रांसफर फाइल अप्रूव कर सकता है वगैरह वगैरह। तो होना तो नुकसान तो सोसाइटी का ही है, सोसाइटी का कामकाज में ही आप बाधा डालने की तैयारी कर लो इन अदर वर्ड्स। बिल्कुल। तो ये तो उनको बता देना चाहिए कि भाई तुम ये क्योंकि क्या है कि सर आप जैसे बोला कि जो सही में चलाने वाले हैं वो तो नहीं चलाते, जिस दिन वो जो मैनेजिंग कमेटी में मेंबर में आ गया वो सोचता है कि मेरे बाप की सोसाइटी हो गई है, ऐसा ही वाह, उनका एक एटीट्यूड हो जाता है सर। वेरी करेक्ट। आजकल क्या है हमारे एक सोसाइटी में कंप्यूटर जनरेटेड बिल आप देते हैं मेंटेनेंस का, एंड इट इज सेज कि सिंस इट इज कंप्यूटर जनरेटेड बिल नो सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड, इज इट वैलिड और नॉट वैलिड? In a housing society, this particular word is a nuisance. It has no legalities. Computer generated bill are given to only certain authorities. यस Huh? They have to follow proper provisions of the Information Technology Act. यस ठीक है ना? तो सोसाइटी में अगर ये बोलते हैं, या अगर फिर से वही आ गया कि सुस्ती में जानकारी नहीं है तो कुछ भी लिख दो, मैंने 4 सोसाइटी में देख के आया तो अपने सोसाइटी में भी लागू कर देते हैं। कानून वैसा नहीं है, लेकिन आप अगर वो कंप्यूटर जनरेटेड बिल आपके इनकम टैक्स के स्क्रूटिनी के दौरान लेकर जाते हो तो आपका आईटीओ, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफिसर जो है वो उस कचरे के पेटी में फेंक देगा उस चीज को, जी बोलेगा दिस इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, राइट है ना? आप राइट सोसाइटी का लेटर हेड में सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर के बगैर करस्पॉन्डेंस करते हो, जी वो भी गैर कानूनी है। ओके आप कंपनी का लेटर हेड उसके अंदर सिन नंबर, कंपनी इंफॉर्मेशन नंबर के बगैर अगर आप करस्पॉन्ड करते हो जी तो वो भी एक गुना, उसको भी 25,000 रुपए का पेनल्टी है ना? तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। जब सोसाइटी Right. चलाने आए हो, कंपनी चलाने आओ, तो थोड़ा बहुत मेहनत कर लिया करो। So I should insist for computer generated bill भले भी होगा तो I should insist that no the honorary chairman or the honorary secretary should or the honorary treasurer should sign the bill and give it to me. Yes, of course. Mr. बोरकर, मंगेश बोरकर। सर कोरम के बारे में आपने नहीं बताया। एमसी मीटिंग में अगर कोरम नहीं है और कोई डिसीजन ये लोग रिवेंज लेने के लिए करते हैं तो वेदर इट इज वैलिड और नॉट? उदाहरण दीजिए बोरकर साहब। नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इनके बैलेंस शीट के ऊपर पूछे हैं और उन्होंने फिर मेरी एक रिकवरी निकाली है जो जायज़ है, जिसके ऊपर उन्होंने एमसी एजीएम में पास किया है स्ट्रक्चरल ऑडिट के बारे में, उसके बारे में पेमेंट किया हुआ है और उसके बारे में उन्होंने वापस मेरे पास रिकवरी की है। तो एंड दैट मीटिंग देयर वाज अ नो कोरम, जो 3 लोग जो अगेंस्ट है उन्होंने ही डिसीजन पास करके वो डिसीजन लिया हुआ है। तो क्या वेदर इट इज वैलिड डिसीजन? Decision is valid or not valid has to be decided only and only in a cooperative court. Okay. नहीं, but quorum you as a ordinary member, yes, do not have any right on this issue.
इफ यू वांट टू रेस, क्योंकि आपका जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक्ट में और बायलॉज में लिखा हुआ है उसके हट के या उसके ऊपर जाके आप कुछ नहीं कर पा सकते। तो इसीलिए एक बहुत मजेदार सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 91। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि मैनेजिंग मीटिंग में कोरम नहीं था हम्म, तो उसे आपको चैलेंज करना है कोऑपरेटिव कोर्ट में। ओके, लेकिन आप मैनेजिंग कमेटी को ये नहीं बोल सकते हो कि तुम्हारा कोरम नहीं था, तुमने ये कैसे कर दिया। ठीक है ना, ये टिपिकली हर मेंबर ये बोलता है कि मैंने जैसा बोला वैसे तुमने क्यों नहीं किया। इट अमाउंट्स टू दैट थिंग। ये मगर वैलिडिटी कैसे, अगर कौन फिर कोरम क्यों बनाया गया है? कोरम बनाया गया, उल्लंघन हुआ है, हम्म, उसका कानूनी पर्याय सॉल्यूशन कहाँ पर है? आपके लिखने से वो कानून बंदी नहीं होने वाला है, या आपकी Okay. रिक्वायरमेंट होगी या तो कोरम नहीं हो जाएगा। उसको Okay. सेट ऑफ करना है या स्ट्राइक डाउन करना है या क्रैश करना है वो रेजोल्यूशन को, तो आपको जाना है कानून के सामने। ओके, आप सिर्फ चिट्ठी पत्री व्यवहार करते रहोगे तो उससे वो चीज सही नहीं हो जाने वाली है। but it doesn't become obligatory on the part of the managing committee to reverse that one, or No, sir. You do not have authority to tell this thing to the managing committee. okay, Neither the cooperative registrar has this thing. It is only with the cooperative court because this becomes a dispute. okay. इसको प्रूव करना पड़ता है। आप कह रहे हो कि कोरम नहीं है, मैनेजिंग कमेटी बोलता है कोरम है, उसने 4 लोगों का और सिग्नेचर लेके आके 7-8 लोगों का कोरम नहीं बना नहीं दिया। सर, डॉक्यूमेंट मुझे दिया गया है, जो मीटिंग का डॉक्यूमेंट मैंने मंगवाया था वो दिया गया है, उसके बाकायदा लिखा हुआ है इतने ही मेंबर्स हैं। ये तो इसलिए सारे का सारा जो यस नो जो बोलना है वो खाली सिर्फ कोर्ट में हो सकता है, ओके ओके नॉट एनीवेयर एल्स। ओके, ठीक है सर, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, आरती sir. अग्रवाल, आपका प्रश्न। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मैनेजिंग कमेटी अपने आप को रजिस्ट्रार क्या, कोऑपरेटिव कोर्ट क्या कैसे डिफेंड कर सकती है। क्या आप उस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं कि मैनेजिंग कमेटी अपने आप को कंज्यूमर कोर्ट में कैसे डिफेंड करे फॉर डेफिशिएंसी सर्विसेज टू द मेंबर्स? उसके लिए हम एक अलग सेक्शन लेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में भी हमने लगभग 50% ही पॉइंट कवर कर पाया हूं मैं। ओके, मैनेजिंग कमेटी के ऊपर आप 4 कोर्टों में एक्शन ले सकते हो। हमने पहले के कुछ वेबिनार पहले भी हमने ये सारे डिफाइन किया हुआ है। जनरल मेंबर्स चाहे तो वो क्रिमिनल कोर्ट में भी जा सकता है, सिविल कोर्ट में भी जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकता है और कोऑपरेटिव कोर्ट में भी जा सकता है। अगर उसके पास प्रॉपर सबूत है, कानून का उल्लंघन हुआ है, वो बोल सकता है कि भाई ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री सबूत है या गवाह है या ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये सारों को सारों लेकर, सारी चीजें लेकर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में जा सकता है। रजिस्ट्रार का अधिकार है नहीं इसमें। और आप जनरल मेंबर्स अगर शोर करता है सोसाइटी में तो सोसाइटी के फंक्शन में बाधा आता है, जो कि मकसद नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। तो कंज्यूमर कोर्ट वाला इश्यू है, तो और कभी किसी और वेबिनार में हम पिकअप करेंगे। थैंक यू हेमंत जी। मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा था, अगर आपके पास 2 मिनट है, मैं आपको बता दूं, मैं नहीं चाहती कि मैनेजिंग कमेटी डिसॉल्व हो, लेकिन ताकि सोसाइटी की फंक्शनिंग अफेक्ट हो, लेकिन मैनेजिंग कमेटी को सबक मिले उनकी मनमानी का। तभी मैंने आपसे कंज्यूमर कोर्ट का क्वेश्चन रेज किया था। That's it. मैं मेंबरों को ये सुझाव दूंगा कि अगर मैनेजिंग कमेटी ईमानदारी से और नॉन इगोइस्टिक वे से कामकाज कर रही है तो ये ख्याल मत लाइए कि मैनेजिंग कमेटी को सबक सिखाना है, क्योंकि कभी ना कभी रोटेशन में आप भी मैनेजिंग कमेटी में आओगे, कभी ना कभी। और जो मैनेजिंग कमेटी के बंदे हैं वो हकीकत में कोई पैसा लेके तो काम नहीं कर रहे। अब ये सोचो कि कोई भी इलेक्शन पे नहीं आता है। अभी के जो पिछले 4 महीने में मेरे पास में जितनी भी खबरें आई हैं उसमें कई सोसाइटी में ऐसा है कि भाई 100 मेंबर की सोसाइटी में 2 से 3 या बहुत 4 ही लोग खाली नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। किस कारण से? यही सब कारण से कि मेरे को मैनेजिंग कमेटी को सबक सिखाना है। मैनेजिंग कमेटी पे बदमाश होती है, 90% ऑफ देम आर बदमाश ओनली। काम ही वैसा कामकाज होता है, वो इंसान के दिमाग में आ ही जाता है। लेकिन जनरल लोगों का मकसद नहीं होना चाहिए। जनरल लोगों का मकसद ये होना चाहिए कि मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ में और 4-5 लोगों को, अच्छे लोगों को चुनूं और आते इलेक्शन में
प्रयास करो मैनेजिंग कमेटी में आके अच्छे से चलाने के लिए, ताकि किसी और को कंज्यूमर कोर्ट में जाने की जरूरत ना पड़े। ओके मिस्टर भट्ट, मिस्टर श्रियार्ड भट्ट। हाँ, जो फ्लैट अगर ट्रांसफर नहीं किया गया है, मतलब जो मेंबर है ना उसके रिलेटिव्स है, उन्होंने ट्रांसफर नहीं करा, उनका कुछ फैमिली डिस्प्यूट है, तो वो रीडेवलपमेंट में बाधा बन सकता है, तो उसमें कमेटी का कोई रोल रहेगा क्या? रीडेवलपमेंट के वक्त में आई रजिस्टर, सोसाइटी का रिकॉर्ड रजिस्टर जो होता है, आई रजिस्टर, जे रजिस्टर, जिसका नाम आई और जे रजिस्टर में दर्ज है पहले से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके, मतलब उसका एग्रीमेंट होगा वगैरह वगैरह, आपको लगता है कि कानूनी तौर से अगर दर्ज है तो सिर्फ और सिर्फ उसी का अधिकार बना रहेगा। और लीगल हायर का डिस्प्यूट या और कुछ डिस्प्यूट, वो सारा कोर्ट ऑर्डर आने के बाद में रिकॉर्ड चेंज होएगा और फिर ही वो रीडेवलपमेंट के प्रोसेस में जुड़ पाएंगे। बिफोर दैट उनका कोई अधिकार नहीं। जो आदमी का नाम आई रजिस्टर, जे रजिस्टर में जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वही कार्यवाही, बातचीत, सिग्नेचर, पोजीशन, फला ठिकाना जो भी कुछ है वही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कुछ कर सकता। अगर आप ये कहोगे कि परिवार में से डिस्प्यूट है तो ये 4 लोगों को मिलना चाहिए, ये फैसला करने का अधिकार, ऑर्डर लाने का, ऑर्डर देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को, ठीक है, मैनेजिंग कमेटी को नहीं है, बिल्डर को नहीं है, आपको खुद को भी नहीं है। तो कमेटी को क्या करना चाहिए, उस मेंबर को क्या बताना चाहिए? कमेटी को भैया तुम डिसाइड करके आओ, ऐसा नहीं तो रीडेवलपमेंट नहीं रुकेगा वो लोग की वजह से। बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। जिसका नाम आईजे रजिस्टर में है वो अगर साइन करता है या नहीं करता है, डज नॉट मैटर। अभी तो कोर्ट का जजमेंट आ गया हुआ है, जिसका नाम है ना वो तो एक्सपायर हो चुके हैं, उसी का नाम बना रहेगा। कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में कोर्ट बोलेगी कि भाई ये अनिल भाई को रजिस्टर में एंट्री करो, तब वो ऑर्डर आ जाएगा, तो उसका नाम एंट्री करो, फिर बाकी की कार्यवाही, बातचीत वहां से आगे शुरू करो। तब तक के लिए सब कुछ सस्पेंस पे, सस्पेंडेड। और ओके, जो रीडेवलपमेंट की मीटिंग होती है इसमें फिर मतलब एसोसिएट मेंबर रहता है, उसको वोटिंग राइट रहता है कि नहीं रहता है? एसोसिएट मेंबर को सब राइट है, खाली फ्लैट बेचने का छोड़ के या भाड़े पे उठा के देने का छोड़ के या गिफ्ट करके छोड़ के बाकी सब राइट है उसके बाद। और हमारी जो राइट छोड़ के सब बाकी सब राइट है। तो हमारी जो कमेटी है उसमें सेक्रेटरी को ही राइट है ये रीडेवलपमेंट की एसजीएम बुलाने का। अगर वो नहीं बुलाता है तो हमें क्या करना चाहिए मेंबरों, कमेटी मेंबरों को? आप तो बुला नहीं सकते हो ना, आप तो साधारण मेंबर हो, किसका साइन से एसजीएम बुलाओगे? कमेटी मेंबर है हम लोग। वही तो पूछ रहा हूँ, आप साइन करने वाले का अथॉरिटी किसको दिया हुआ है? बायलॉ नंबर 131 अगर आप देखो 131 है या 137 है, उसमें अधिकार किसको दिया हुआ है? सेक्रेटरी को दिया है पहला, और सेक्रेटरी नहीं सुनता है तो चेयरमैन को दिया है। और अगर चेयरमैन भी नहीं करता है तो क्या अधिकार आपको दिया हुआ है ये आप सोचो, देखो कहीं दिया हुआ है क्या अधिकार। अगर दिया हुआ है तो आप साइन कर देना। 131, 132 चेकआउट कर लो बायलॉज इतना बड़ा है, सब कुछ ध्यान रखना मेरे लिए मुश्किल है। नहीं ठीक है। मिस्टर योगेश सागर, आपका प्रश्न। Yes sir, one thing was that what is the effective date of AGM resolution? What is the effective date of AGM resolution? From the day it is passed or आपने अगर 15 सितंबर को एजीएम किया है, उस दिन रेजोल्यूशन पास कर दिया हुआ है, वो रेजोल्यूशन कैसे पास किया आपने? वो चीज मेजॉरिटी मेंबर्स के यस से पास किया हुआ है या मेजॉरिटी? तो जिस समय आपने ये लिखा दिया वहां पे कि रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय अप्रूव्ड बाय सो एंड सो, सेकेंडेड बाय सो एंड सो, पास्ड यूनानिमसली, उसके अगले क्षण से वो रेजोल्यूशन इफेक्टिव हो जाता है। अगर आप ये बोलोगे कि एजीएम के मिनट्स बटने के बाद में 3 महीना 6 महीने के बाद में इफेक्टिव होता है, तो वो गलत फहमी है जनरल मेंबर्स को। ओके सर। यस सपना राउत, बोलिए मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो मेंबर कोऑप्शन करके कमेटी मेंबर में आते हैं, क्या उनको राइट्स नहीं होता है एजीएम में बात करने का? उनको सारा का सारा राइट्स है, ईच एंड एवरी राइट। ओके, अगर वो मेंबर है, बन गया, मैनेजिंग कमेटी मेंबर बना दिया गया है, हाँ, तो उसको सारे का, अगर वो चेयरमैन भी बन सकता है और सेक्रेटरी भी बन सकता है, वो रीडेवलपमेंट का मीटिंग भी साइन कर सकता है,
वो एजीएम Okay. का मीटिंग भी अटेंड कर सके, साइन कर सके, सभी कुछ कर, उसमें कोई भी बंदिश कुछ भी नहीं है। हमने 2 सैटरडे पहले ऑप्शन के ऊपर वेबिनार किया था, तो देख लीजिए। Okay. उसमें सारा कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगा। Okay, sir. Thank you. Hello. So can I ask one question? यस मिस्टर Hello. गोम्स। Yeah. So after the formation of the society and the handover by the builder, there had been few members who owe some money to the builder. So is the provisional chairman has the right to recover the dues, the past dues which the member is owing to the builder? Does he have the authority? Now, presuming your society was registered on, let us say, Recently. 1st of April. Right. Recently does not have a date, so we Okay. talk specifics. Right. तो समझने में आसान हो जाता है। Right. तो अगर आपकी पहली अप्रैल को सोसाइटी रजिस्टर हुई है, Okay. उस दिन आपके 100 मेंबर है, Right. उसमें से 10 मेंबर का ड्यूज बाकी है टुवर्ड्स बिल्डर। Right. तो सोसाइटी जिस दिन रजिस्टर हुई उसके पहले का कोई भी ड्यूज है, वो ड्यूज सोसाइटी रिकवर या वसूली नहीं कर सकता। Okay. Okay, because in law there is a term called privity of contract. The privity of contract starts from date of registration by the society with the members on date of registration. उसके पहले उसका जो privity of contract है वो एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट किसके बीच में है? वो फ्लैट ओनर और बिल्डर के बीच में है। Right. तो बिल्डर का अगर कुछ लेना देना है तो वो अपना उस फ्लैट ओनर के साथ डायरेक्ट करेगा, वो भी सिर्फ 3 साल तक ही कर सकता है। Right. ओके, Yeah. And the letters to be addressed to the chairman or the secretary? Who it is to be addressed? फॉर व्हाट पर्पसेस? The letters for any grievance letters of to the committee, is it to be addressed to the secretary or to the chairman or to both? There is no grievance letter for outstanding dues of a builder to be addressed to the society. There is no Okay. grievance, there is no contract. मैं कौन, Okay. तू कौन, मेरा और तेरे साथ में क्या संबंध है? मैं मेंबर जो अभी इस रजिस्ट्रेशन के बाद में जो मेंबर बना हुआ है उसका Right. संबंध सोसाइटी के साथ में है। Right. ठीक है ना? और जिस डेट पे रजिस्ट्रेशन हुआ सोसाइटी का उसके पहले का क्या हुआ, उससे सोसाइटी का लेना देना क्या है? सोसाइटी इज नॉट ए एजेंट और ए प्रॉक्सी Right. फॉर Right. द बिल्डर टू रिकवर मनी फ्रॉम Right. फॉर्मर ओनर्स। ओके, Right. so you cannot write any letter to the managing committee for all these things. Okay. But they are the ones who are asking the members, no sir? They are asking from the members. Let the members tell them Okay. to get lost. Okay. Okay. Fine. Thank you. बोलो ना कि भाई आप कौन हो मुझसे पूछने के लिए, तो मेरा और बिल्डर का बीच की बात है, आप कौन हो मुझसे पूछने वाले हैं? Right, sir. Right. Thank you very much. That is the same theory which I just told me, कि Right. मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है लेकिन फिर भी मैं घुसूंगा उस बीच में, ऐसा हो जाता है। एनीवे, थैंक यू Right. मिस्टर गोम्स। Thank you, sir. Thank you, sir. मिस्टर अरुण राज प्लीज। सर वही रिकवरी के ऊपर ही है। हमारी बिल्डिंग कुछ 40 साल पुरानी बिल्डिंग है जो रीडेवलपमेंट हुई है 10 साल पहले। बिल्डर इज नो वे कनेक्टेड, वो भाग गया है एंड पुराने मेंबर्स और नए मेंबर्स दोनों बिल्डिंग में रह रहे हैं। इन पुराने मेंबर्स के जो ड्यूज हैं विच इज टुवर्ड्स द बिल्डर, will the new committee responsible because I'll be taking over the society from first When you say the word redevelopment, इसका मतलब ये हुआ कि वो सोसाइटी को पिछले 40 बरस से दूसरी कमेटी मैनेज कर रजिस्टर्ड है। रही थी, रजिस्टर्ड है। तब कमेटी का छोड़ दीजिए, कमेटी तो आती जाती रहती, लेकिन सोसाइटी तो 40 बरस से वही की वही है। हाँ जी, एग्रीड? हाँ जी। तो बिल्डर का ड्यूज कहाँ से आ गया उसके अंदर? नहीं, बिल्डर ने जब रीडेवलपमेंट किया है तो कुछ पेमेंट उन्होंने कुछ एडिशनल एरिया पुराने वालों को दिया था जो पेमेंट अभी तक उन्होंने नहीं किए। तो दैट ड्यूज की लायबिलिटी पुराना मेंबर और बिल्डर के बीच में है। अगर Unless उसका and कोई फ्लैट until आपके बिकता है unless and until उसका तो ऐसे ड्यू वाले फ्लैट अगर कोई बेचना चाहता है तो फिर नया कमेटी का क्या रोल है? नया कमेटी उसको नहीं बेचने दे सकता अगर बिल्डर ने उसको लिस्ट दिया हुआ है। ऑन गोइंग सोसाइटी रजिस्टर्ड है,
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन चालू है, आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट में ये सारा प्रोविजंस ऑलरेडी मेंशन होगा। अगर डेवलपमेंट एग्रीमेंट में ये है एक्स्ट्रा एरिया देने का या फंड्स रिकवर करना है वगैरह वगैरह, तो इट इज ए ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, मतलब 3 जन उस प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े हुए। पहले खाली 2 जन थे, बिल्डर और फ्लैट ओनर। सोसाइटी रजिस्टर होने के बाद में सोसाइटी आणि मेंबर, अभी 3 जन हो गया, सोसाइटी, बिल्डर और मेंबर। सो इट इज ए त्रिकोण टाइप का एग्रीमेंट हो गया, तो एक दूसरे की लायबिलिटी मौजूद है उसके अंदर। यहाँ तो पे we सिर्फ like एक to- डेवलपमेंट एग्रीमेंट बना है पुरानी कमेटी और बिल्डर के साथ, जिसके आधार पे बिल्डिंग को तोड़ के नया बनाया है, जिसमें पुराने मेंबर भी रह रहे हैं और नए को भी बिल्डर ने फ्लैट बेचा है। तो उनके जो ड्यूज आपको है, शायद इंडिविजुअल एग्रीमेंट और सोसाइटी का रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट स्टडी करना होगा इस चीज के लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक, थैंक फिर यू, आप इस पे आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, थैंक यू हेमंत जी। थैंक यू मिस्टर राज। Anybody else has any question? Mr. Hemant, can I ask a question? Yes, madam. तो क्वेश्चन ये है कि अगर एमसी के पास किसी मेंबर ने कंप्लेन किया है अबाउट अनदर मेंबर और उसके अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन के बारे में, तो व्हाट इज द एमसीज रिस्पांसिबिलिटी नाउ? ओके, तो अगर और किसी मेंबर ने कंप्लेन किया हुआ है कि मेरे अगल बगल के फ्लैट वाले में या सोसाइटी के तीसरी बिल्डिंग में इस फ्लैट में ये सारा गैर कानूनी काम हुआ है, तो अगर मैनेजिंग कमेटी को खुद पता चलता है तो मैनेजिंग कमेटी हैज टू इन्फॉर्म द बीएमसी, द फायर डिपार्टमेंट एंड द पुलिस स्टेशन। और अगर उस मेंबर ने आपको रिटर्न कंप्लेन किया हुआ है तो उस कंप्लेंट का कॉपी लेते हुए आप रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज यानी बीएमसी, फायर, पुलिस स्टेशन को लिखो कि भाई हमारे ये मेंबर ने कंप्लेंट किया हुआ है, काइंडली इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन एंड लॉन्च प्रोसिक्यूशन। बट द मैनेजिंग कमिटी ऑन इट्स ओन does not have any authority or power to do anything regarding illegal constructions or etc. etc. Okay, so if no one has complained, then you don't have to do anything. But if you have received a written complaint, no ma'am, not so that. You never heard me earlier in my lecture. I mentioned if the society comes to know, suo motu जिसको बोलते हैं, समझो मानो आपको सोसाइटी के ऑफिस में बैठे बैठे आपके सिक्योरिटी एजेंसीज ने आके ये बोला कि साहब वो फ्लैट में 101 में काम चल रहा है जोरदार, और हमने झांक के देखा तो उसने अपना टॉयलेट का पोजीशन बदली कर दिया हुआ है। अब ये सोसाइटी को पता चला हुआ है। सोसाइटी की बिल्डिंग का ट्रस्टी कौन हो? मैनेजिंग कमेटी है। देख रेख, जिम्मेदारी, सेफ्टी एक्सेट्रा एवरीथिंग इज गिवन टू द मैनेजिंग कमेटी। कानून ये बोलता है। ओके, अगर ये बोलता और ये सही है तो आपको रिलेवेंट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है कि हमारे प्रीमिसेस में ये सारा गैर कानूनी काम हो रहा है। ओके, अगर उस गैर कानूनी काम से सोसाइटी की बिल्डिंग को तकलीफ आती है तो जो प्रोसिक्यूशन होगा वो उस मेंबर के खिलाफ भी होगा और सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ भी होगा। बिकॉज ये होगा कि दोनों ने साठगांठ जानते हुए भी ये काम को इग्नोर किया हुआ है। ओके, ठीक है, तो यू हैव टू इन्फॉर्म बीएमसी, द फायर डिपार्टमेंट। बीएमसी में कानून कार्यवाही होगा, एमआरटीपी एक्ट में डीसी रूल्स वगैरह वगैरह लिया जाता है। फायर डिपार्टमेंट में भी इन्फॉर्म करना है आपको और पुलिस स्टेशन में भी इन्फॉर्म करना है। फॉर्मल लेटर लिखो, अगर एफआईआर दर्ज होता है तो वेल एंड फाइन, अगर एनसी दर्ज होता है तो वेल एंड फाइन। लेकिन अगर ये सब भी नहीं होता है तो प्रॉपरली कम से कम स्टेटमेंट कंप्लेंट लेटर दे दो विद गिविंग एज मच एज डिटेल्स एंड इफ एनी एविडेंस इज देयर, जैसे फोटोग्राफ्स हो सकता है, वीडियो क्लिप्स हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड का स्टेटमेंट हो सकता है, माली का स्टेटमेंट हो सकता है, वगैरह वगैरह। नेबर भी कंप्लेंट करते हैं, जैसे आपने बताया कि एक नेबर ने कंप्लेंट किया, तो अगर नेबर का कंप्लेंट आया है तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद हो गया। इन ऑर्डर टू सेफगार्ड योरसेल्फ, सेफगार्ड द मैनेजिंग कमिटी, द मैनेजिंग कमिटी हैज टू सू मोटू पहले से ही इन्फॉर्म कर देना है कि भाई हमारे सोसाइटी में ये गलत काम हुआ, हमारे दायरे में नहीं है ये, पर आपके दायरे में कानूनी कार्यवाही करने का, इस पर प्लीज आप कानूनी कार्यवाही करो। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। पूर्णिमा मैडम, आपका क्वेश्चन।
Sir, what if the building already has a 488 notice given by the BMC? If the whole building is under a 488 notice from the BMC, still do we go ahead and do that? Typically, when 488 notice is given to a building, it does not mean it has been given to the building as a whole. Okay, if there are 100 flats in the building, 488 notice is given to everybody. And if the building itself has made violations, for example, जैसे एक्स्ट्रा पानी की टंकी बना दी ऊपर, पैसेज वे में इंक्रोच कर लिया, सोसाइटी ऑफिस बना दिया, बच्चों का कोई छोटा सा रूम बना दिया, मंदिर बना दिया, क्लब हाउस बना दिया, गैर कानूनी टॉयलेट बाथरूम्स बना दिए वगैरह, तो बिल्डिंग को नोटिस देना जरूरी है। और अगर सारे फ्लैट्स को दिया हुआ है तो मैनेजिंग कमिटी शुड नॉट बी कंसर्न्ड एट ऑल इन दिस इश्यू। इट इज बिटवीन the BMC and the flat owner to rectify so and so. However, if the building is involved for some reason, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बिल्डिंग में खुद ही गैर कानूनी काम हुआ है और मैनेजिंग कमेटी ने सू मोटिव पहले से ही इन्फॉर्म नहीं किया हुआ है, तो मैनेजिंग कमेटी इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर। तो अगर समझो आपने एक क्लब हाउस गैर कानूनी ढंग से बना दी, 488 का नोटिस आया, आर्किटेक्ट के थ्रू अंडरटेकिंग दे के बीएमसी को बोल दो कि 3 महीने का टाइम दिया जाए हमें, हम इसे रिस्टोर कर देंगे टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। रिस्टोर करो, आर्किटेक्ट को बोलो कि बीएमसी में कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कर दे, बात खत्म हो गई। उसके अंदर आपको सोसाइटी का लायबिलिटी नहीं रहेगा, लेकिन मेंबर का इंडिविजुअल लायबिलिटी बीएमसी की प्रति बना रहेगा। Okay, so sir, so just to confirm our understanding, so in a building where the 488 notices are already issued to all the members of the building, because it's not to the building but to all the members, and even then you are receiving some complaints from one member about another member, do we still have to go and inform the BMC, or because 488 notices are already there, so no new action needs to be taken? If you want that the managing committee should be safe or absolved from future prosecution, whether criminal, whether civil, etc., then you just simply make a formality. I'm repeating the word formality, a shosha of writing a letter, informing the authorities, keeping that letter on record, and sleeping over it. That's it. You do not have any authority to do anything further on it. All right, sir. Thank you. Okay, thank you. Okay, anybody else? Sir, you had mentioned about outstanding if management committee has not recovered under section 73, the secretary is liable. Is it in act or bylaws? Section is not there in the bylaws. Section is there only and only in the act. Okay, in the bylaw हम लोग बोलते हैं bylaw number so and so. So that is not section number. That is never referred as section number. Section में कुछ ऐसा दिखा नहीं मेरे को. Anyway, I'll just check again. Thank you. Mr. Mathuri? Mathuri? Yes, sir. Sir, people in our society, they make some alterations like that. They take the permission from us for one thing and they do some other work in the flat. And thereafter they claim that it is as per the architect who has given the certificate to us. And it is very much in the order. There is no violation. Just we have removed the wall, weight-bearing walls from the premises. So there is no structural alteration. But whereas OC is not there in the society. So in that case, do we require to appoint somebody as an architect or somebody to assess whether it is alteration is structural alteration or not? And then we have to proceed, or something is removed which is there already in the building, then we have to go to the as you suggested, municipality, police and fire department, sir. अगर कोई भी मेंबर अपने खुद के फ्लैट के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज करता है, हाँ सर, तो उसको क्लासिफाई किया गया हुआ है टेनेबल रिपेयर्स और नॉन टेनेबल रिपेयर्स। अगर बीएमसी कानून देखा जाए तो धारा 342 में टेनेबल रिपेयर्स दिया हुआ है। क्या क्या टेनेबल रिपेयर्स है? तो चलो फ्लोर टाइल बदली कर दो, प्लास्टर बदली कर दो, पेंट बदली कर दो, छोटा मोटा और 7-8 आइटम दिया हुआ है। उसके अलावा मेंबर अपने फ्लैट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। तो टेनेबल रिपेयर्स के लिए बीएमसी का परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
टेनेबल रिपेयर्स करने के लिए सोसाइटी की भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर और कुछ हो रहा है और वो अपना प्राइवेट आर्किटेक्ट का रिपोर्ट लेके आ रहा है, ओके, प्राइवेट आर्किटेक्ट का अगर रिपोर्ट लेके आ रहा है तो वो भी नल एंड वॉइड है। आपको सोसाइटी को आर्किटेक्ट अपॉइंट करना है और वो अपना अनबायस्ड या न्यूट्रल रिपोर्ट देगा, उसको कंसिडर करना है और फिर आपको बोलना है कि भाई ये तुम्हारा टेनेबल रिपेयर है या नॉन टेनेबल रिपेयर है। और फिर भी अगर जबरदस्ती कामकाज कर रहा है, जो कि हर सोसाइटी में होता है, तो आप सिंपली ये 3 डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो और अपना घर पे बैठो आप ऐसे। Okay, thank you so much, sir. Yetki madam. Hemanji, I would request to throw us some light on the budget projection report that you said. What exactly it should comprise of? अगर आप अपना सोसाइटी का इनकम और एक्सपेंडिचर पेपर पिकअप करोगे, शीट पिकअप करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक्सपेंडिचर्स का कॉलम दिखाई देगा। यस, ठीक है, उसमें क्या क्या दिखाई देगा? पोस्टल एक्सपेंडिचर, पगार पानी, बिजली, सिक्योरिटी वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे 20-25 हेड्स दिखाई देंगे आपको। राइट हैंड साइड में क्या दिखाई देगा कि भाई मेंबर से कितना आया, ब्याज कितना आया, सिंकिंग फंड से क्या आया, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस कितना आया और कोई इनकम कितना आया। मतलब टोटल राइट साइड में पैसा कितना आया और लेफ्ट साइड में पैसा कितना गया, नॉट क्रेडिट डेबिट। एक्सपेंस लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इनकम दिखाया हुआ। यस, टिपिकली अगर अकाउंट वर्ड में बोलो तो डेबिट क्रेडिट ही हुआ, बट 2019 साल में सिक्योरिटी का खर्चा हुआ 100 रुपया। 2020 में कितना होना चाहिए था, 2021 में कितना होना चाहिए, तो इसका एक आपको शीट बनाना पड़ता है। शीट में कैसा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एक्सपेंडिचर के हेड थे आपके, वो आपको लिखना है और उसमें 4 कॉलम क्रिएट करना है। पिछले 3 साल का फिगर डालना है उसके अंदर, 17-18, 18-19, 19-20 और चालू साल 20-21। 20-21 का जो फिगर डालोगे, मतलब आते साल का 20-21, अभी आया नहीं है 20-21 साल, ये मान के चलते हैं। तो 20-21 साल में 17-18 में सिक्योरिटी का फिगर हुआ 100 रुपया, 18-19 में हुआ 110 रुपया, 19-20 में हुआ 120 रुपया। तो 20-21 में कितना होना चाहिए? दैट इज कॉल्ड बजट प्रोजेक्शन। एक्सपेक्टेड कैप अप प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। अगर उस प्रोजेक्शन को कैलकुलेट करोगे और फिर आपका रिटर्न्स जो आ रहा है, जो इनकम आ रहा है आपको, जो क्रेडिट आ रहा है, उसको कैलकुलेट करोगे, अगर पारी पासू है, सेम टू सेम है, सरका है, तो कोई बात नहीं। और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है ना, और इनकम कम है, तो दोनों यू हैव टू पुट अप एन एजेंडा फॉर रेजिंग योर मेंटेनेंस एंड सर्विस चार्जेस। और अगर इनकम ज्यादा है तो मैनेजिंग कमिटी डज नॉट डिराइव एनी राइट टू रेज मेंटेनेंस और सर्विस चार्जेस। सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव है नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे ऑपरेट करना। मेंबर से पैसा लेके बैंक में जमा करना वो मुद्दा नहीं है, क्योंकि मेंबर से आप पैसा ले रहे हो तो 18% GST भी देना पड़ रहा है मेंबर को। आप गैर कानूनी काम भी कर रहे हो। इन अदर वर्ड्स 2500 के ऊपर GST, आप ज्यादा पैसा लोगे तो GST का रेशियो बढ़ते जाएगा। यस, अंडरस्टूड। तो दिस इज द वे बजट प्रोजेक्शंस आर मेड। काफी लंबा टॉपिक है, बट आई हैव एक्सप्लेन टू यू इन वेरी ब्रीफ। हो तो I would be grateful to understand this, but in short it is like past, present, future budget to run the society. 3 past and 1 future. Past, present, and what could be in future, considering that whether raise in maintenance is required. तो अभी 17-18 का डेटा आपको 17-18 के बैलेंस शीट से पिकअप करना है कि क्या खर्चा हुआ था जी। 18-19 का 18-19 के बैलेंस शीट से पिकअप करो, एक्चुअल फिगर्स पिकअप करना है। और जो फ्यूचर का है वो प्रोजेक्टेड फिगर पिकअप करना है कि भाई आपको ऐसा लगता है कि पिछले साल में सिक्योरिटी का इतना खर्चा हुआ, तो इस साल इतना होगा। अब हर साल कुछ ना कुछ तो बढ़ा के दोगे किसी को, तो आपको अप्रोक्सीमेट फिगर डालना है, नॉट एक्चुअल। और बाकी जो कुछ अमाउंट लास्ट में अगले साल बच गया, अनफोर्सिन खर्चा हो गया या अनफोर्सिन बच गया, बैलेंस जो बचा हुआ है
अमाउंट सरप्लस बचा उसको रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर देना है। ओके सर, रिजर्व फंड में ट्रांसफर हो गया तो इसका मतलब फंड है सोसाइटी में, तो मेंटेनेंस बढ़ाने का बहाना नहीं मिल पाएगा। okay. Sir, one more, the next webinar, I would request more details on budget projection as well as in legally by what means can the society there is shortfall of funds because of the defaulters not paying on time. So the various ways in which income can be generated, which are allowed under law. So if we can have a topic on that. इनकम जनरेट करने का मकसद नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है मैडम सोसाइटी का। इट इज नहीं नॉट अ है। बिजनेस एंटिटी। नहीं लेकिन मैडम, पार्किंग है, पार्किंग इज अगेन इज चार्जेबल। पार्किंग चार्ज करो, लेकिन अल्टीमेटली आपका वो जो कंट्रीब्यूशन पोर्शन है राइट साइड में, क्रेडिट साइड में, इनकम जी। साइड में, उसको मैच करना है आपको एक्सपेंडिचर साइड में। और आप Yes. उसको मैच करते नहीं करते हुए भी आप ज्यादा इनकम रेज कर रहे हो, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसीलिए सोसाइटी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जी, कि आपने पैसा किस चीज के लिए रेज किया, खर्चा कब था ही नहीं, तो किस चीज के लिए रेज कर लिया आपने, isn't it? या तो यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। मैंने शुरू में लेक्चर में क्या बोला कि मैनेजिंग कमेटी, ये लेक्चर उस मैनेजिंग कमेटी के लिए है जो ट्रांसपेरेंट है और जो प्रूडेंट है। और अगर जो कोई ये मैनेजिंग कमेटी ये सोचती है कि नहीं मैं इस ढंग से भी पैसा वसूली करूंगा, उस ढंग से भी करूंगा मैं पैसा, जिस ढंग से भी आके देखेगी मुझे पैसा वसूली करना है, आई वॉन्ट माई पाउंड ऑफ फ्लैश, शेक्सपियर, है ना। ओके। मेरे को आपने मेंबर आए हो, आप इतने अमीर हो, आपने फ्लैट भाड़े पे चढ़ा दिया हुआ है, तो मेरे को तो मेरा हिस्सा पहला चाहिए। जैसे नॉन ऑक्यूपेंसी इज अगेन अ सोर्स ऑफ जनरेटिंग। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस इज नॉट ए टर्म कॉल्ड एज इनकम, ओके, इट इज ए चार्ज, ओके, व्हिच कम्स इन द सोसाइटी। या एंड बजट प्रोजेक्शन में आपको एक ये चीज भी ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी गार्ड को अगर आपने 100 रुपया खर्चा करना है तो मेंबर से भी 100 ही रुपया लेना है, 200 रुपया नहीं ले पाओगे आप। करेक्ट। That is what is in a cooperative movement. It has to be transparent. It has to be mutual. No profit, no loss basis. अगर आप ये सोचोगे कि मैं बाकी का पैसा एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, जमा कर दूंगा साइड में, ये तो आपकी घर की खेती तो थी नहीं। So the maintenance, if at all to be raised by how much percent can the managing committee increase every time? Say every 5 years we need to raise the maintenance. So It is not that way, madam. It is not that way. बजट प्रोजेक्शन शीट बनाने के बाद में आपको ये पता चलेगा whether you are spending more than your income or you are spending less than your income. If you are spending more than your income, then your expenditure side will show it. बैलेंस शीट में भी दिखाई देगा ना। बैलेंस शीट में आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑडिटर लिख कर देता है, आपका अकाउंटेंट लिख के देता है इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अगर एक्सपेंडिचर ओवर इनकम है तो मैनेजिंग कमिटी हैज ए राइट टू इंक्रीज द मेंटेनेंस विद अप्रूवल ऑफ द जीडी मेंबर। But is it any particular percentage? By 10%? No percentage. अगर आपका 100 फ्लैट है और 100 रुपए डेफिसिट है, अगर 100 फ्लैट है और 100 रुपया एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो आप 100 रुपए शॉर्टफॉल हो रहे हो, तो हर कोई एक रुपया वसूली करोगे। देयर इज नो सच थिंग एज परसेंटेज। Okay, sir. Okay. It has to be pari passu. It has to be same to same. Okay. Whatever is the shortfall, that has to be taken care of. Yeah, that has to be equally divided Among and all taken amongst the members. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you, sir. We will definitely do a session sometime in future specifically relating only and only to budget projection. तो पूरा का पूरा एक सेशन चला जाएगा। बड़ा चीज है, डिस्क्राइब करने में वक्त लगेगा। This is a vast ocean. We get to learn so many things. The more time you take, the more things you are coming to know. Yes. Okay. Thank you, ma'am, for joining. Thank you, sir. Thank you for a wonderful session. Thank you. Anybody else? It's already 9:30. No, sir. One small question. Yes, Mr. Sagar. I just we were discussing about this recovery of builder dues before incorporation. So can we society take a stand that they will obtain a letter of authority from builder and charge to the maintenance account? Is it possible? The society has got no role to take such authority letter for anybody. It is not their purposes. Okay, that is upon the builder to do so. That is upon the builder to do so. Okay.
Okay, thank you. ओके, भारती चौहान मैडम। सर रिनोवेशन का काम चल रहा है फ्लैट ओनर के इधर पे, तो इज इट लायबल टू टेक सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम द फ्लैट ऑफ द ओनर? अगर आपने ये डिपॉजिट लेने का वगैरह जनरल बॉडी में रेजोल्यूशन में पास किया हुआ है, ओके, जनरल बॉडी रेजोल्यूशन में पास किया हुआ है, और वो व्यक्ति उस समय वहां पे मौजूद है या आपने उसको मिनट्स दिया हुआ है और कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आया हुआ है अगले 6 महीने तक, तो आप वो सिक्योरिटी डिपॉजिट, पार्किंग डिपॉजिट, टेनेंट डिपॉजिट वगैरह वगैरह आप ले सकते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। Typically for all these things you need to amend your bylaws to be made it as legally effective. Okay, okay, Without thank you, amending the bylaws, it does not have any legal force. Anyway, thank you Sir, for one joining question. in. thank you so much sir. सर वन क्वेश्चन है Mr. Lakshman, yes please. सर, नॉमिनी का अभी तक प्रोबेट नहीं आया है, वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में लाइकली है, अभी 1-2 महीने में चला जाएगा, प्रोबेट में टाइम लगेगा, तो कैन नॉमिनी साइन एज अ फ्लैट नंबर 101 इन रीडेवलपमेंट? नॉमिनी को अगर सोसाइटी ने प्रोविजनल मेंबर बना दिया हुआ है, हाँ बना दिया, नॉमिनी है, लीगल है। नॉमिनी कैन नॉट बी लीगल हायर कैन नॉट बी नॉमिनी। अगर वो लीगल हायर है तो लीगल हायर के हैसियत से अप्लाई करता वो, और अगर लीगल हायर के हैसियत से अप्लाई किया हुआ, कैपेसिटी में अप्लाई किया हुआ, तो वो नॉमिनी का कोई भी हक, राइट्स क्लेम नहीं कर पाएगा। और अगर वो नॉमिनी के एप्लीकेशन के बेस पे प्रोविजनल मेंबर बना हुआ है तो वो बाकी और कोई राइट्स क्लेम नहीं कर पाएगा। तो वो डीए सही नहीं करेगा? अगर नॉमिनी कर सकता है, वो डीए साइन कर सकता है, बिकॉज ही इज ए प्रोविजनल मेंबर। अच्छा, ओके, बट द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी विल नॉट बी गिवन टू हिम, इट विल बी गिवन ओनली given when the legal heirs come on record. अच्छा, thank you sir. Okay. Thank you. Anyway, thank you everybody. With the permission of participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.